Hello and good morning. Good morning and good evening. Welcome to Prakriti Analysis, and thank you all for joining us today. My name is Anuva Attarde, and I'm a program committee member at the Attarde Foundation. Over the last 2 decades, Attarde family has been involved in India, focusing mainly on women empowerment issues, along with tribal area development and supporting orphans and blind kids. We steer collective action towards women-centric issues, aspiring a gender-neutral society where every woman will have the finest opportunity to change her life in every possible aspect. Attarde Foundation has conducted several projects and hosted innovative webinars about genetics and the brain, and donated oxygen concentrators and BiPAP machines to India during the peak of COVID-19. We have also donated 2,500 plus water bottles to our local high school during water contaminant issues and have administered food donations, which were sent out to food pantries all over New Jersey. Recently, Attarde Foundation became an official certifying organization for the US President's Volunteer Service Award. Today, I have the privilege to introduce Acharya Prakar Dixit, born in Kanpur, Uttar Pradesh. He pursued his education in Bishop Cotton Boys School in Bangalore and later completed a bachelor's in business administration with a specialization in human resource from Christ University, Bangalore. Prakar has trained more than 100 people around the world to adopt a Vedic worldview since becoming a certified trainer with Mahavastu. Prakar has helped over 400 people via the practice of Yogdan, allowing them to overcome obstacles and develop as individuals. His mission is to help people grow in life, and he offers professional Prakriti, Vastu, and astrology consultation to individuals, businesses, and industries. His clients come from a variety of industries in India, USA, and Nepal. So please join me in welcoming our insightful, brilliant speaker, Acharya Prakar Dixit. Thank you for such a warm welcome, and it's an honor that I've been called on this platform by Attarde Foundation, and Prakriti analysis is one of my favorite topic, and I love discussing about the human personality. Actually, this is why I pursued HR as my bachelor's degree, and I was quite in search for like why people are reacting this way, why such decision makings are happening, and why someone can grow so much and someone like is struggling to strive in life. Okay. Will that be okay if I communicate both in English or Hindi? Is the audience comfortable with that? Yeah. ओके परफेक्ट। तो देखिए, प्रकृति एनालिसिस एक जो ये टॉपिक है, ये आया है हम लोग का, अगर मैं बताऊं तो श्रीमद् भगवत गीता से रेफरेंस लिया गया है इस चीज का। उस श्रीमद् भगवत गीता में अगर आप देखेंगे तो कि ह्यूमन पर्सनैलिटीज को 3 टाइप पे बांटा गया है, रजस सतत तमस। तो वी विल बी एक्सप्लोरिंग ऑन दैट टॉपिक, एंड मैं थोड़ा सा वैदिक लर्निंग के बारे में आपको बताता हूं। व्हाट इज द वैदिक अप्रोच ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन, व्हाट इज द वैदिक इनसाइट्स, एंड वैदिक नॉलेज कैसे इंपार्ट की जाती है। देखिए, वैदिक नॉलेज और जो कन्वेंशनल लर्निंग चलती है, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। वैदिक नॉलेज में क्या होता है कि पहले आपको एक्सपीरियंस करा दिया जाता है एंड देन आपको टीच किया जाता है। एंड जो कन्वेंशनल लर्निंग है उसमें क्या हो जाता है, फर्स्ट आपको थ्योरी समझा दी जाएगी एंड देन यू विल आस्क टू अप्लाई इट। ठीक है, तो थोड़ा सा अप्रोचेस में डिफरेंस है, वैदिक अप्रोच एंड कैन आई हैव माय स्क्रीन ऑन द स्पॉट बिकॉज़ आई कांट सी माय फेस, तो थोड़ा सा Okay, yeah. Okay, perfect. Now much better because I wouldn't be able to see my face. तो अब क्या होता है, वैदिक अप्रोच इट्स थोड़ा स्लाइट डिफरेंट अप्रोच लेती है। वो पहले आपको अनुभव करा देती है। अगर मैं सही बताऊं तो इट इज लाइक द एनवायरनमेंट जैसे लेता है, जैसे पहले प्रकृति हम लोग का टेस्ट कर लेती है, फिर लर्निंग कराती है। इट इज द सेम अप्रोच जो वैदिक अप्रोच होती है। ठीक है, कैन आई गेट द परमिशन टू कास्ट माय स्क्रीन सो दैट आई कैन शो द स्लाइड? Yeah, I think you do have. Okay. ओके, सो टुडेस टॉपिक हम लोग ये 4 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। एक तो पहला पार्ट ये होगा कि पहले पहचानेंगे व्हाट इज प्रकृति,
प्रकृति क्या होती है, ठीक है। एंड देन द सेकंड पार्ट विल बी इसको पहचाना कैसे जाए, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज प्रकृति, देयर आर टू लेवल्स ऑफ रिकॉग्नाइजिंग प्रकृति, so we will be discussing on that, and then we will discuss on what is the application of प्रकृति एनालिसिस। भाई अगर समझ में आ गया कि हाँ ये मेरी प्रकृति है तो उसका क्या करें, उससे क्या एडवांटेज है मुझको, ठीक है। एंड देन द फोर्थ स्टेज आ जाता है कि अगर एक बार पता चल गया तो हाउ कैन आई मेंटेन माय प्रकृति। तो ये 4 फेजेस में हम लोग की प्रकृति एनालिसिस रहेगी। एंड मैं थोड़ा सा अब आपको समझाता हूं व्हाट इज प्रकृति, ठीक है। तो प्रकृति अगर आप इस शब्द को ही 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं तो पराकृति, पराकृति, इफ यू टेक द मीनिंग ऑफ परा दैट इज समथिंग डिवाइन, कृति दैट मीन्स सम क्रिएशन, ठीक है। तो डिवाइन क्रिएशन अगर मैं इसको अगर शब्द को ही एक्सप्लेन करूं तो इट्स अ डिवाइन क्रिएशन। अब ये आता कहां से है एंड व्हाट इज द नीड ऑफ इट। तो प्रकृति की जो सबसे पहली शुरुआत होती है कि अपनी जितनी भी वैदिक साइंसेस हैं, जैसे मान के चलिए एस्ट्रोलॉजी, वेदास, भगवत गीता, जितने भी ये वैदिक सब्जेक्ट्स हैं, इसका सबसे पहला स्टेप ये है, इफ वी आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज प्रकृति, ये आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं ये कोई क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है। अब छोटे से एग्जांपल में समझाता हूं। हैज एवरीवन सीन आरआरआर मूवी? कोई ऐसा है जिसने नहीं देखी है? आई थिंक माय क्वेश्चन इज रॉन्ग। कोई ऐसा है जिसने आरआरआर नहीं देखी है? आई होप कि सबने देखी होगी, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट ऑन दैट, है ना। तो अब आरआर में आप देखिए तो प्रकृति को कितने ब्यूटीफुल तरीके से समझाया गया है। इफ यू सी, एक फायर दिखाया गया, एक वाटर दिखाया गया, एंड द जॉइनिंग पार्ट वो एयर एस्पेक्ट को दिखाया गया। तो इफ यू सी, जो रामचरण जी थे उन्होंने फायर प्रकृति का रोल प्ले किया है, एंड जो वाटर एलिमेंट था वो जूनियर एनटीआर ने प्ले किया है, एंड आलिया भट्ट प्लेड द रोल ऑफ एयर एलिमेंट, ठीक है। तो ये 3 टाइप के लोग होते हैं। टू गिव यू अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑन इट, मैं एक जंगल का इंसिडेंस लेता हूं आपके साथ, ठीक है। जंगल की कहानी लेता हूं। जैसे जंगल में आप अगर आप देखोगे तो एक शेर है, एक हिरन है और एक हाथी है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो ऑल दीज 3 अलग 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 प्रकृति के हैं। शेर अपने लाइक शो बिजनेस में है, जब भी जितने भी नाजियों के जितने भी डिस्कवरी के मूवमेंट्स होते हैं, वो जब शेर शिकार कर रहा है, ही इज काइंड ऑफ इन अ शो बिजनेस, है ना। वो दूसरों को हंटिंग करता है, जब मन होता है तो अपना आलस में पड़ा रहता है, बट व्हेन इट कम्स फॉर अ शो इट गिव्स अ गुड परफॉर्मेंस, ठीक है। अब सेम देख लेते हैं हम लोग हिरन को। अब हिरन जो होती है क्या करती है, इन सर्च ऑफ समथिंग, नहीं कहा जाता है कस्तूरी वो सर्च करती रहती, ढूंढती रहती है, और उसको पता चलता है उसके पेट में ही नहीं, दोहा हम लोग के लिए कहा जाता है। तो वो सर्च करती रहती है, घास खाती है, और बहुत फास्ट होती है, क्विक होती है। अगर आप हाथी को देखिए तो क्या होता है, वो वाटर एलिमेंट का है, ठीक है। इट स्टेज विद द फैमिली, फैमिली को साथ में रखता है, आराम से खाता रहता है और एंजॉय करता है। जब जब एक हाथी अकेला हो जाता है तो उसको पागल हाथी कह दिया जाता है, दैट इज he is not playing his role, he's not adapting to his प्रकृति। अब मैं सिंपल एग्जांपल में बताऊं, ये जो शेर है ये फायर एलिमेंट का हो गया, इसको आप रजस भी कह सकते हैं। जो गीता में रजस को डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है वो ये शेर है, रजस या फायर एलिमेंट हो गया। और इसको आयुर्वेद की भाषा में इसको पित्त प्रकृति की कहते हैं, पित्त प्रधान, ठीक है। तो इफ वी सी ऑल दीज 3 वर्ड्स, रजस, फायर एंड पित्त, ये एक ही को रेफरेंस दिया जा रहा है, ठीक है। अब जो हिरन है, अब मैंने इसकी आपके ट्रेड्स देख लिए, हिरन के आपने, क्विक है, नई चीज ढूंढता रहता है, कुछ चीज में लुकआउट कर रहा है, तो ये सतत सतत प्रकृति का है। तो अब सतत प्रकृति को जो गीता में वर्णन किया गया है, इन रेफरेंस अगर मैं हम लोग जो आगे बोलचाल में बात करेंगे वो बात करेंगे एयर एलिमेंट, या इसको आयुर्वेद के एस्पेक्ट में वात प्रधान भी कहते हैं, ठीक है। ऑल दीज 3 मीन्स द सेम, ठीक है। अब जो एलिफेंट है वो हमारा हो गया वाटर प्रकृति का, इसको तमस प्रकृति भी कहा जाता है। तमस गीता में रेफरेंस के हिसाब से वाटर, या आयुर्वेद में इसको कफ कहा जाता है। अब ये क्या हो गया, ये जो 3 एलिमेंट है, प्रकृति एंड द वर्ड एलिमेंट एंड स्वभाव, ये तीनों एक ही मतलब का होगा। इफ आई एम यूजिंग दिस वर्ड आई एम रेफरिंग द सेम थिंग, ठीक है। इफ आई एम saying element I am referring to prakriti, if I am saying स्वभाव I am again referring to prakriti, all these meanings the same। अब एक व्यक्ति के अंदर, एक पर्सन के अंदर ये जो 3 एलिमेंट हैं ये वेरिएड कॉम्पोजिशन में होते हैं,
इट इज नॉट लाइक कि एक पर्सन 100% फायर होगा, इट इज नॉट लाइक कोई पर्सन 100% एयर होगा, इट इज नॉट कि कोई 100% वाटर होगा। ये अलग अलग वेरिएड कॉम्पोजिशंस में होते हैं, ठीक है। अब जैसे 3 लोग हो गए, रजस सत्व तमस, फायर एयर वाटर। अब इसके अगर मैं 3 सब डिवीजन कर देता हूं तो 3 इंटू 6 में सब डिवाइड हो जाते हैं। अब हो जाता है एयर फायर, मतलब इसका एयर का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। आई हैव शोन इट इन द ग्राफ। अगर आप ग्राफ में देखें तो देखिए वाटर फायर का क्या होगा, वाटर 64% है, फायर उसका 25% है। सो वी विल रिफर दिस पर्सन एज वाटर फायर, क्योंकि इसका वाटर एलिमेंट सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है एंड द सेकेंड एलिमेंट इज फायर। तो ये एक प्रकृति हो गई वाटर फायर। सेम वे जो मैंने दूसरा ग्राफ शो किया है, ये फायर वाटर, उसका फायर 62% है और उसका वाटर 26% है, तो ये हो गया फायर वाटर, ठीक है। अब ऐसे ही जिसका एयर डोमिनेट करेगा सबसे ज्यादा, तो उसको हम लोग कहेंगे एयर फर्स्ट और फायर सेकेंड। तो ऐसे 6 सब डिविजन्स में ये डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब ये जो 6 सब डिविजन्स हैं अपनी वेदों के भाषा में, इसीलिए अपने यहां 6 दर्शन है। 6 दर्शन क्यों? क्योंकि 6 दृष्टिकोण से ही इस वर्ड को देखा जा सकता है। देयर इज नो 7th दृष्टिकोण। तो अपने यहां जब वैदिक आप एस्पेक्ट उठाएंगे तो कहेंगे कि यहां अपने यहां वेदों में 6 दर्शन होते हैं। 6 तरीके से ही एक चीज को ऑब्जर्व किया जा सकता है, मतलब 6 एक चीज होगी उसके 6 ओपिनियंस हो सकते हैं, बिकॉज एवरी पर्सन, एवरी प्रकृति analyzes or sees that or views that object in a 6 different opinions or 6 different perspective, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति से उसको जज करता है। अब मेरे जो गुरु हैं डॉक्टर खुशदीप बंसल, उन्होंने एक किस्सा बताया था। उन्होंने जाके बोला फैक्ट्री में जाके कि यहां गोल क्या है, ठीक है। तो एक ने कहा कि मेरी कंपनी का गोल है कि इसका टर्नओवर 500 करोड़ हो जाए। एक ने कहा कि हाँ कल के फुटबॉल मैच में गोल किया था रोनाल्डो ने, और एक ने कहा कि रोटी गोल होती। तो आप समझ सकते हैं एक शब्द के 3 अलग अलग मीनिंग निकाल लिए गए। तो हर व्यक्ति ने अपने अपने पर्सपेक्टिव से उस गोल शब्द का मतलब अलग अलग प्रकृति के हिसाब से ले लिया। तो इसीलिए 6 दृष्टिकोण कहे जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक सेकेंड, हाँ 6 हो गए। अब इसमें हम लोग समझते हैं कि ये जो मैंने परसेंटेज लिखा है इसको, अब हम लोग सेकेंड फेज ऑफ आवर प्रेजेंटेशन आ जाते हैं कि अब ये जो पता चल गया कि हाँ भाई 6 टाइप के लोग होते हैं। इज देयर एनी डाउट ऑन दिस 6 टाइप ऑफ प्रकृति? अगर किसी को है, वी कैन क्लियर दैट डाउट एंड मूव अहेड, बिकॉज एक बार ये नहीं क्लियर हुआ तो आगे के टॉपिक्स थोड़ा सा टफ होंगे समझने के लिए। इज एनीवन हैविंग डाउट? यू कैन अनम्यूट एंड आस्क मी द क्वेश्चन कि भाई ये क्या चीज। टिल हियर आर वी क्लियर? एवरीवन ओके विद दिस? परफेक्ट, ठीक है। अब हम लोग अगले स्लाइड में आते हैं कि ठीक है मुझको पहचाना कैसे जाए कि मेरा एलिमेंट क्या है, हाउ टू रिकॉग्नाइज इट। सो देयर आर 2 लेवल्स ऑफ एनालाइजिंग योर प्रकृति। इसको रिकॉग्नाइज करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि हम लोग इसको फिजिकल अपीयरेंस से एनालाइज करें, बट ये बहुत एक ओवरव्यू देता है। बट जो सेकेंड ऑडिट में बताऊंगा कि सेकेंड तरीके जो होता है वो थोड़ा सा और इनर बिहेवियर को एनालाइज करके ये पहचानी जाती है। तो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट जो आपका फिजिकल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से लिया जाता है वो ये शीट है जो मैंने जो शायद टाटा फाउंडेशन ने शेयर भी करी है अपने ग्रुप पे। तो वी कैन रिफर दैट शीट। इस शीट को अगर इफ यू गाइस हैव टेकन द प्रिंट आउट, आप इसको रेफर करिए और इसको अपने हिसाब से भर लीजिए। सो दिस विल बी द फर्स्ट लेवल ऑफ एनालाइजिंग योर प्रकृति, ठीक है। तो सबसे पहला जो बॉडी फ्रेम हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब कुछ क्या होता है, कुछ बॉडी फ्रेम जो बहुत थिन टाइप के होते हैं। इफ आई गो गिव यू एन एग्जांपल, जैसे मैंने आरआरआर मूवी में आलिया का बताया, तो इफ यू सी द बॉडी फ्रेम इज क्वाइट थिन, ठीक है। तो वो एयर प्रकृति की हो गई, एक फ्रेम के हिसाब से बॉडी देख ली जाती है। अब देखिए फिजिकल, अब यहीं पे ही ये पहला स्टेप हो जाता है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, ठीक है। नहीं, जो कहा जाता है अपने आप को जानने का, जो सबसे पहला स्टेप हो जाता है। अब जब से सबसे पहले जब ये इस चीज को इंप्लीमेंट किया गया था, तो डॉक्टर कुलदीप बंसल जब अज्ञातवास के बाद आए थे तो उन्होंने इसकी एक वेबसाइट बनाई एंड इट वाज अ पायलट रन कि भाई पहचाना जाए कि वेबसाइट में अगर हम लोग क्वेश्चनेयर से डेटा को इनपुट करते हैं, विल दैट बी कि सबको अपनी प्रकृति पता चल जाएगी। Everything was perfect, system was perfect, all the pointers and everything was perfect, software backend team everything was perfect, but क्या हुआ, लोग प्रकृति नहीं पहचान पाए। लोग प्रकृति क्यों नहीं पहचान पाए? Because they themselves are not aware कि क्या है। अब जैसे
अब मैंने लिखा हुआ है आईज, इसमें आईज मिसिंग हो गया, एक आईज का भी फैक्टर होता है। अब लोगों ने क्या किया, सेल्फी कैमरे से अपने आंखें देखी, ठीक है, तो लगा कि यार ये तो मेरी थिन आंखें लग रही हैं, तो अपने आप की थिन आंखें दिखाई है ना। आप अपने आप को जिस तरीके से देखते हैं और वो डेटा एग्जैक्टली इसमें जाता है, तो ये पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब आपने देखा कि भाई बॉडी फ्रेम मेरा तो मीडियम है, अपने से भी भारी लोग टहल रहे हैं बाहर, तो आपको लगा कि आप 90 किलो के हैं और आपको लग रहा है कि हाँ नहीं भाई ये तो 100-150 किलो का है, तो आई थिंक आई एम अ मीडियम फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला फ्लॉ आता है कि आप अपने आप को ही एनालाइज करने में थोड़ी मिस्टेक कर देते। तो इसीलिए मैंने रेफरेंस पॉइंटर्स दिए हुए हैं कि आप बॉडी फ्रेम के आधार में पहले अपने आप को पिक कर लीजिए। थिन बॉडी फ्रेम, मीडियम बिल्ड एंड वाटर, ये तीनों अलग बॉडी फ्रेम्स होते हैं, ठीक है। एंड जो सेकंड आ जाता है वो वेट के आधार पे आप देख सकते हो। मेल का अगर 55 to 65 का वेट है तो आप इस पे टिक कर सकते हो। फायर का है तो आप ये रेंज जो मैंने दे रखी है, और थर्ड है अपनी वाटर की रेंज। फिर नोज के आधार में आप फिगर आउट कर सकते हो। नोज का आप जब देखोगे तो एयर प्रकृति वाले की नोज हमेशा हल्की सी यहां से टिल्ट कर जाती है। इट इज अ वेरी फाइन ऑब्जर्वेशन, जब आप यहां देखोगे तो हल्की सी टिल्ट करती है एयर प्रकृति वाले की, ठीक है। एंड फायर एलिमेंट वाले की बहुत पॉइंटी नोज होती है। एंड इफ यू सी वाटर एलिमेंट पीपल, उनकी थोड़ी सी नोज लार्ज पार्ट पे चली जाती है, ठीक है। अब अगला आ जाते हैं टीथ लाइन। टीथ लाइन क्या होता है, एयर वाले की जब आप देखोगे तो पूरा टीथ लाइन आगे पीछे ऊपर गैप और बड़ा नहीं, थोड़ा सा अनइवन इरेगुलर टीथ लाइन उसकी दिखती है, ठीक है। और फायर वालों के क्या होते हैं, बड़े शार्प टीथ होते हैं एंड इट इज येलोइश, मतलब उनका कलर येलो होता है, ठीक है। और जो वाटर प्रकृति वाले के हैं उनके व्हाइट टीथ होते हैं बट इट इज लार्ज, वो बड़े बड़े बोले जो सफेद दांत, जो चमकने वाले दांत हैं, वो वाटर एलिमेंट वालों के हैं। एंड नाउ इफ यू सी नेल, ये जो नेल का मैं रेफरेंस ले रहा हूं, दिस विड्थ, ये ऐसी विड्थ की बात हो रही है, ये ऐसी लंबाई की बात नहीं है। नाउ इफ यू ऑब्जर्व माय नेल, ये वाटर एलिमेंट के नेल है। देखिए आप देख रहे हैं चौड़े कितने हैं, ये विड्थ काफी है, तो ये वाटर एलिमेंट के नेल हो गए। इफ आप लोग अगर अपने आप को चेक कराना चाहते हैं, आई कैन सी इट इन द वीडियो, आप लोग देखिए ये जिसका बहुत थिन होगा वो एयर प्रकृति के नेल हो जाएंगे। यूजुअली एयर प्रकृति के नेल जो होते हैं वो ड्राई होते हैं, सूखे सूखे होते हैं और बहुत थिन दिखते हैं, ठीक है। फायर एलिमेंट वाले होते हैं इसी के थोड़ा सा मीडियम, इससे थोड़े, ठीक है। और स्किन के बेस में अगर डायग्नोस किया जाए तो एयर एलिमेंट वाली स्किन होती है वो बहुत होती है, फायर सॉफ्ट होती है। यूजुअली मैंने फायर वालों क्या है कि जब जब वो धूप पे जाते हैं उनके लाल पड़ जाती है। एंड जो वाटर एलिमेंट वालों की होती है, एंड जो वाटर एलिमेंट वालों की होती है वो थोड़ा थिक स्किन होती है। कौन सी आप मैं वेरीफाई कर दूं कि आपके प्रकृति कौन से, तो आई बी वेरी कंफर्टेबल टू चेक इट। आप मधु जी आप दिखाना चाहती हैं ये कैमरा, मैं एक बार आप ये, इसीलिए मैंने, इट विल बी नाइस कि आप सभी लोग अपनी वीडियो ऑन कर ले, क्या एक दूसरे को एनालाइज के देखते चले जाएंगे कि किसकी क्या प्रकृति। मधु जी जो दिखा रही हैं ये एयर प्रकृति के हैं। इफ लाइट ऑन मधु जी, जी आपकी ये फायर प्रकृति, ठीक है। आलोक जी एयर एलिमेंट वाले हैं। आप भी दिखा दीजिए नेल, कैमरे की तरफ ऐसे दिखा दीजिए। दिख नहीं रहे भारती जी आपके, आप सुशील जी आपके तो फायर एलिमेंट के हैं। हाँ भारती जी आपके एयर एलिमेंट के हैं। ये मुझे नाम नहीं दिख रहा, सेकंड जी का तो आ गया एक, नहीं जा सकती है क्या, मैं उनके एक बार नेल वेरीफाई कर दूं फिर सेकंड लेवल में। जूम यूजर दिख रहा है जिसकी पिंक कलर की बहुत अच्छी नेल पॉलिश है, आपके एयर प्रगति के हैं। शिल्पा जी आप प्रकृति के हैं, एयर है। यस यस यस, पिंक नेल पॉलिश एयर, यस। नैन्सी एयर प्रकृति, काफी एयर प्रकृति वाले आए हैं, बहुत जिज्ञासु लोग आए हैं। एयर प्रकृति वाले यूजुअली बहुत जिज्ञासु होते हैं। अनीता जी आपके भी, शरद जी आपके भी एयर प्रकृति के हैं। हर्षिता एयर है, बहुत एयर वाले आ गए आज। हाँ सो
एक सिर्फ सुशील जी मुझको दिखे हैं जो जिनके रजस एलिमेंट वाले हैं। जी आपके मुझको दिख नहीं रहे। परफेक्ट, फायर है अभी। अभी तक कोई वाटर नहीं आया। लेट्स सी, मतलब आप लोग को ओवरऑल आइडिया दिख रहा है वाटर के। देखिए ये है, देखिए अगर मैं दिखाऊं तो बड़े थिक टाइप के जो नेल हो जाते हैं। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। ये फर्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस होती है कि भाई फिजिकल फीचर्स से आपको देख लिया जाए। अब मैं ये बताऊं कि एक क्वेश्चन आया है, डज जेंडर प्ले द रोल्स इन प्रकृति। मैं एक बार पूरा पढ़ लेता हूँ। डज जेंडर प्ले अ रोल इन प्रकृति? नो, जेंडर का कोई रोल नहीं होता। हर जेंडर हर प्रकृति का हो सकता है। अब वुमेन कैन आल्सो भी, मतलब ये तीनों में आ जाती है। कोई जेंडर का रोल नहीं होता। जेंडर का रोल इसमें हो जाता है कि जो वेट का मैंने रेफरेंसेस दिया है, आप अनु जी, अन्ना चिनू जी, में आप दिखा दीजिए। आपके फायर हैं अन्ना चिनू जी, आपके फायर हैं। यस, और किसी को वेरीफाई कराना है? सोनी जी आपके एयर है। सोनी जी, निखिल आपके फायर हैं। ऋषित एयर। परफेक्ट है। आप लोग सर माइन। अन्ना जी आपके एयर लग रहे हैं जी। सर चलिए, अनामिका। अनामिका जी आपके एयर लग रहे हैं वैसे। शीतल महाजन जी ओके आपके सर। फायर रखिए। परफेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग आगे हाँ बढ़ते सर। हैं। एक मोटा मोटा आप लोग को ऑब्जर्वेशन आ गई होगी नहीं कि कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेवल आप लोग अपनी शीट भर दीजिए। अब देखिए ये जो पॉइंटर्स है मैंने इसलिए दिए हैं ताकि आप लोग एक एक टिक पॉइंट कर दीजिए। अब जैसे क्या होगा, जैसे मान के चलिए वेट के आधार पे, बॉडी फ्रेम के आधार पे आपके वाटर के 2 पॉइंटर्स आ गए। ठीक है, मैं एक बार कास्ट कर देता हूं फिर से। अब जैसे क्या हुआ कि वाटर आपके 2 पॉइंटर्स टिक हो गए। ठीक है, अब आपने देखा कि भाई मेरे फायर के 3 पॉइंटर्स ये टिक हो गए। ऐसे ऐसे आप अपने नंबर ऑफ पॉइंट्स को टिक कर लीजिए कि हाँ मेरा कौन सा एलिमेंट ज्यादा है। इससे ये चीज रियलाइज हो जाएगी कि फिजिकल के आधार पे। अब मैं एयर का थोड़ा सा आंखों के बारे में बता देता हूं, वो इस शीट पे नहीं है। देखिए एयर की आंख कैसे होती है। एयर की आंख चंचल होती है, वो एक जगह रुकती नहीं। कट 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 कट। जब बात करते हो तो जो मेरी आंखें हैं वो एयर की हैं, अगर आप देखोगे तो चट 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 इधर उधर चलती रहेगी। ठीक है, अब जो फायर की आंख होती है वो कैसी होती है, ऐसा लगता है वो ऐसे जो देखता है एक्टर तो ऐसा लगता है कि मतलब सोल तक वो रीड करे ले रहा है ना। कुछ लोगों की आंखों से डर लगता है नहीं कि हाँ ये ऐसे देखना चालू किया तो ऐसा लग रहा है कि अंदर तक झांक ले रहा है कि मैंने अंदर सोचा क्या था वो पता चल गया था। अब जैसे मैं सुशील पांडे जी की जैसे वो देख रहा है तो मुझको समझ में आ रहा है वो फायरी आइज तो मुझको देख रही है। ठीक है, तो ऐसे ही हो जाता है। एयर की बहुत चंचल आंखें होती हैं, वो इधर उधर रहता है। और जो फायर की आंख होती है दैट गोज डीप, वो बहुत फोकस्ड होती है एंड इट इज वेरी, मतलब क्या है ना, वो इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे लेके आती है। ठीक है, अब जो वाटर की आंख होती है इफ यू ऑब्जर्व, वो बड़ी इमोशनल आंख होती है। वो ऐसी आंख होती है जिसको देख के ही आप नहीं कोई बात होगी और हल्के से वहां आंसू जो एकदम से बड़ी बड़ी आंखों में जो एकदम से आंसू आ जाते हैं, वो यूजुअली वाटर की आंखें होती है। तो आंखों के आधार पे भी आप टिक पॉइंट कर सकते हो कि मेरी आंख कौन सी। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जैसे फायर के आपके 2 पॉइंटर टिक हो गए, फिर एयर का 1 पॉइंटर टिक हो गया और वाटर के 3 पॉइंटर टिक हो गए, तो आप कौन से एलिमेंट हो जाओगे फर्स्ट लेवल के आधार पे? वाटर फायर, क्योंकि वाटर के सबसे ज्यादा पॉइंटर्स हुए और दूसरे नंबर में फायर के पॉइंटर्स हुए, तो आप वाटर फायर हो गए उस आधार पे। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरप्रिटेशन है आपकी। ठीक है, कि भाई प्रकृति पहले लेवल में हमने कैसे जानी। अब हम लोग आते हैं सेकेंड लेवल ऑफ इंटरप्रिटेशन। द सेकेंड लेवल ऑफ इंटरप्रिटेशन ये फिजिकल लेवल के बियॉन्ड जाती है। ये समझा जाता है कि व्यक्ति अंदर से कैसा है। ठीक है, अब यहीं पे ही बहुतों की मिस्टेक हो जाती है। मैं अब थोड़ा सा आपको एक इन जनरल व्यू देता हूं कि ये हर एलिमेंट वाला होता कैसे है। ठीक है, अब मैं पहले एयर से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, अब एयर एलिमेंट वाला क्या होता है, अगर आप सभी लोगों ने गजनी मूवी देखी होगी तो एयर एक्चुअली पे गजनी, उसको कुछ याद ही नहीं रहता। ठीक है, वो जहां पे है वो वहीं पे ही है। ठीक है, तो एयर वालों की सबसे ज्यादा आदत क्या होती है कि उनको नोट्स बनाने की तुरंत आदत होती है। ये वो लोग होते हैं जो अपने साथ बिल्कुल एक कागज रखते हैं और कोई बात हुई इंपॉर्टेंट तो कट 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 नोट बना लिया उन्होंने। ठीक है, क्योंकि उनको याद ही नहीं रहने वाला।
हाँ, जैसे हर्षिता जी ने अपने नोट्स दिखाए क्योंकि याद ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो एयर एक्चुअली में गजनी, वो बिल्कुल क्या होता है, वो प्रेजेंट में जीते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट में जीने में जो जो चीजें अभी के लिए इंपॉर्टेंट है उसमें जीते हैं। द मोमेंट एयर प्रकृति वाला पास्ट में जाएगा तब उसके लिए खराब है, जब एयर वाला फ्यूचर में चला जाएगा तब उसके लिए खराब है, बिकॉज दीज बोथ फैक्टर्स उसके लिए पेनफुल हो जाते हैं। ठीक है, अब दूसरे आधार पे आ जाते हैं हम लोग एयर प्रकृति वाले के लिए। एयर प्रकृति वाले बहुत जल्दी सीख लेते हैं, दे आर क्विक लर्नर्स। वो कोई भी लर्निंग वाली फैक्टर्स होगा वो तुरंत सीख लेंगे, उनको जल्दी से कोई भी नया टॉपिक अगर आप समझाओगे तो वो तुरंत सीख लेंगे। एयर एलिमेंट वाले बहुत क्विक अडेप्ट भी करते हैं। वो ऐसे हैं कि अगर आपने एयर वाले को कन्विंस कर लिया तो वो आपके साथ है, आपने एयर वाले को कन्विंस कर दिया तो वो आपके साथ भी है। वो दोनों अलग पार्टियों के साथ भी जो आपस में अगेंस्ट में होंगी वो दोनों के साथ खड़ा हो सकता है। वो ऐसा है कि जो भाई कन्विंस कर ले मैं उसके साथ। एयर एलिमेंट को आप अगर नेचर से एनालाइज करेंगे तो जिस तरीके से हवा चलती है बाहर वैसे ही उसके थॉट्स चलते हैं। एकदम से ये थॉट आया, फिर एकदम से वो थॉट आ गया, फिर एकदम से ये थॉट आ गया। वो ही इज द वर्स्ट डिसीजन मेकर। वो डिसीजन मेकिंग की जब बात आ जाती है तो वो क्या करता है, उसके नहीं, उसका दिमाग बस चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ही कैन नॉट कंक्लूड ऑन अ थॉट। ठीक है, बट यहीं पे उसका एडवांटेज क्या है, ही इज गुड एट गिविंग ऑप्शंस। वो क्या करता है, बहुत अच्छे से आपके लिए ऑप्शंस प्रेजेंट कर देता है। ही नोज कि भाई ये चीज करने के 4 तरीके हैं ये। ठीक है, एंड एयर कैप अगर मैं बोलूं तो जो सतत एलिमेंट है वो ज्ञान मार्गी है, जो फायर एलिमेंट है वो कर्म योगी है, जो वाटर एलिमेंट है वो भक्ति योगी है। इवन गीता में ये 3 योग अलग अलग लोगों के लिए बताए गए हैं। अब लोगों ने क्या किया कि नहीं मैं तीनों योग करूंगा, तो पता चला जीवन में पीढ़ा लेके जीवन झंड कर चुके। ठीक है, क्या है, ये तीनों योग एक्चुअली में सबके लिए अलग अलग हैं। एयर वाला अगर आपको अपनी प्रकृति एनालाइज हो जाती है तो आप ज्ञान मार्गी वाले हैं, और जब आप अपना ज्ञान रोकेंगे आपको जीवन में पीढ़ा मिलेगी। ठीक है, आप जब 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 तक नया ज्ञान गैदर करते रहोगे, जब तक नया ज्ञान आप सीखते रहोगे, आप लाइफ में एंजॉय करते रहोगे। जब जब आप घूमोगे फिरोगे तब तक आप लाइफ एंजॉय करते रहोगे। और जैसे ही ऐसा होगा कि भाई रुक गया है तो एयर पीढ़ा में आ जाता है। ठीक है, आई होप ये मेथड मेरा ठीक लग रहा होगा कि जैसे मैं प्रकृति एक एक एलिमेंट को मैं उठाता हुआ चला जाऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अब आ जाते हैं वेस्ट कॉन्स्टिपेशन में। एयर वाले का पेट हमेशा खराब रहता है, क्योंकि क्या है ना, अंदर ड्राई है पूरी बॉडी, अंदर सूखा है, स्किन ड्राई रहती है, तो क्या होता है उसका डाइजेशन भी बहुत इफेक्टिव नहीं होता। वो पीरियड पूरे टाइम ये वही वाले लोग हैं जो सुबह सुबह एकदम से गर्म पानी लेके बैठ जाते हैं, रुक जाओ एक बार पहले मतलब फ्रेश हो जाएंगे तब आगे बढ़ेंगे, है ना। मतलब एक मतलब स्टमक क्लियरेंस इज अ बिग इशू फॉर एयर एलिमेंट पीपल। ठीक है, हो जाता है उनके साथ। ठीक है, अब मैं अगर बोलूं कि थोड़ा हिच भी रहते हैं, हिचक रहते हैं, बट एयर एलिमेंट पीपल आर आर्टिस्टिक पीपल। जितने भी आर्ट फॉर्म हैं वो एयर एलिमेंट वालों को दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, एयर एलिमेंट वाला आर वेरी क्विक, दे आर क्विक एट लर्निंग। तो वो कोई भी चीज होती है ना वो तुरंत सीख के करते हैं। और एयर वाला जब डांस करता है यूजुअली बहुत अच्छा लगता है, एयर वाला जब गाता है तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और इंडिसाइसिव होता है। हाँ, एयर को डर भी लगता है, ये उसके लिए वो लाइन नहीं अप्लाई नहीं होती कि डर के आगे जीत है। नहीं भाई, तुम डर के आगे बढ़ जाओगे तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए वो लाइन अप्लाई नहीं है। बाय नेचर ही इज फियर, उसके अंदर डर रहता है, एंड बिकॉज उसके डर रहता है ही इज वेरी केयरफुल एट हिज अप्रोच, एंड वो कई चीजों को कंसीडर करते हुए आगे बढ़ता है। अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एयर लापरवाह भी होता है। वन ऑफ माय क्लाइंट जो डॉक्टर है, ठीक है, और ही इज एयर एलिमेंट, एंड क्या हुआ, उनके जो प्रिस्क्रिप्शन देता है डॉक्टर उसके आधार पे कई लिटिगेशन केसेस हो गए उनके ऊपर। तो मैंने उनको क्या कहा, भाई साहब तुम ये सोचो कि तुम प्रिस्क्रिप्शन लेटर प्रिसाइजली बिल्कुल एक्यूरेट कर पाओगे, तो आंसर इज नो। ठीक है, इससे बेटर है कि यू वेरीफाई योर प्रिस्क्रिप्शन बाय सम अदर ऑफ योर असिस्टेंट। तो जब से ये चालू हुआ उनके लिटिगेशन केसेस कम हो गए। तो ये सोचिए लापरवाही का स्किल एयर के पास है, वो करता है भाई लापरवाही। क्यों करता है? बिकॉज ही इज वेरी फास्ट। वो सोच बहुत तेज रहा है, वो जितनी तेज सोच रहा है वो उस तरीके से एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अब मैं हाँ, एयर वालों की क्या होती है, जो नींद होती है वो बहुत जल्दी टूट जाती है। यूजुअली क्या होता है, ये वो ही है जो 2 बजे एकदम से उठ के एकदम से नींद खोल के बैठ जाते हैं। ठीक है, एयर एलिमेंट वालों की जो नींद है बड़ी ब्रेक ब्रेक हो जाती है, नॉट वेरी साउंड स्लीपर। ठीक है,
अब अगले में आ जाते हैं, हाँ, हर चीज की डिटेलिंग करता है। एयर वाले की जब बात करोगे तो वो अगर वो कोई भी चीज समझा रहा होगा तो कहेगा कि हाँ, जब मैंने पेन खोला तो उसपे जो रैपर था वो ग्रीन कलर का था, लेकिन जब वो लिखा गया तो रेड कलर का लिख रहा था, और देखा तो उसकी जो थिकनेस थी वो 0.7 mm की नहीं 0.5 mm की थी। वो इतनी डिटेलिंग में चला जाता है कोई भी एक एस्पेक्ट पे, ठीक है। बाकी लोगों का ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब वो बहुत लोगों को जानता है, एयर वाला, ही इज गुड एट नेटवर्किंग, एंड वो बहुत लोगों को जानता है, बट ही हैज वेरी फ्यू क्लोज फ्रेंड्स, वो जिनके साथ बड़ा होता है, मतलब बहुत close बात करता है। यूजुअली व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, एयर वालों की जो स्माइल होती है बहुत इनोसेंट स्माइल होती है, वो जब हंसते हैं तो उनको हंसी देख के अच्छा लगता है, ठीक है। बाकी फायर वालों के साथ क्या होता है जब हंसेगा, है ना, ये वो वाले हैं जो नहीं फायर वाले हंसते, जैसे सुशील जी फोटोज में आपकी स्माइल बहुत अच्छी नहीं आती होगी शायद। सुशील जी एग्री कर रहे हैं इस चीज को। एक्चुअली में फायर वालों के ना बिल्कुल एकदम से कैमरा कॉन्शियस हो जाते हैं और उनकी स्माइल बड़ी हो जाती है। एयर वालों की बहुत इनोसेंट स्माइल रहती है। दिस इज क्वाइट अ रैप अप फॉर एयर एलिमेंट पीपल। आई होप कि जो जो चीजें आपके साथ होती होगी यू कैन रिलेट इट वेरी वेल, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट फायर एलिमेंट वालों के ऊपर, ठीक है। अब फायर वाले कैसे होते हैं, देखिए फायर वाले, गांधी जी के, मैंने एक बार टॉपिक समझाया था, गांधी जी के 3 बंदर, जब गांधी जी को रियलाइज हुआ कि यार ये एलिमेंट के आधार पे 3 बंदर उन्होंने दिए हुए, ठीक है। अब क्या है, गांधी जी के जो 3 बंदर हैं, तो वो वाला बंदर जो कान में हाथ लगाए हुए, कान में हाथ लगाए हैं, मतलब जो नहीं है उस पे, ये मतलब नहीं है कि बुरा ना सुनो, ना ना, दैट पर्सन इज नॉट एबल टू, मतलब वो शुरुआत के 2-3 लाइन के बाद वो चौथी लाइन सुनता ही नहीं है। फायर वालों के साथ क्या होता है, जब कोई व्यक्ति उसके सामने बोलता है उसको थोड़ी देर में समझ में आ जाता है ये बोलना क्या चाहता है, ठीक है। तो वो आगे की बात सुनना ही रोक देता है, ठीक है। वो कहता है भाई जल्दी बोलो, कम टू द पॉइंट, है ना, आगे आओ, पॉइंट पे आओ, हो गया, समझ में आ गया, हाँ करना क्या, करना क्या है। तो दीज फायर एलिमेंट पीपल आर एक्शन ओरिएंटेड पीपल, ये है कर्म योगी। अब कर्म योगी वहां देख रहा है कि भक्ति योगी में वहां राधे राधे चल रहा है, और वो जाके कर्म छोड़ के अगर भक्ति में चला जाएगा तो लाइफ में पीढ़ा आ जाएगी। सो दिस इज द कस्टमाइजेशन ऑफ वैदिक साइंसेस, वो एक एक चीज पे कस्टमाइज कर देती है। अब आप हो कर्म योगी, ठीक है। अब जैसे मान के चलते हैं आपको एक एम्प्लॉय ने हायर किया कि भाई साहब तुमको ये काम करना है, ठीक है। अब आप उसके ऑफिस में जब वो आया, आप ढोलक मजीरा लेके गए, भैया बॉस आ गए, 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 जय बॉस, जय बॉस। एक बार तो ठीक है, 2 बार ठीक है, बॉस कहेगा पागल हो गए हो क्या, क्यों गाना गा, भाई साहब काम करो जाके, ठीक है। तो क्या है ना, कर्म योगी के लिए कर्म प्रधान है, उसके लिए ये नहीं कि वो भक्ति पे चला जाए, ठीक है। तो फायर एलिमेंट पीपल, भाई गेट द थिंग्स डन, तुम तभी इफेक्टिव हो, नेचर तुम्हारा तभी साथ देगा जब आप काम करवा के दे पा रहे हो, अदरवाइज आपके लिए भक्ति बहुत रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। अब फायर एलिमेंट वाले क्या होते हैं, इनको फ्यूचर दिखता है, ये ऐसे होते हैं, ये प्रेजेंट में रहते नहीं, ये भविष्य के 4 साल बाद 10 साल बाद की बात कर रहे होते हैं कि भाई साहब तुम्हें पता है ना, जब ये आ जाएगा तो मैं एक ऐसी बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा जहां से ऊपर से जब देखा जाएगा तो नीचे कांच होगा और आप ऐसे चल पाओ। वो मतलब वो भविष्य की ही बातें कर रहा है, वो प्रेजेंट में बात ही नहीं करता है, ठीक है। फायर एलिमेंट वाले आर गुड, मैं कहूं डिसीजन मेकर, जिस तरीके से एयर ऑप्शन दे सकता है, एयर ऑप्शन देता है। सर जी आपने, शरद जी आपको कोई डाउट है, आप पूछ लीजिए। डाउट ये, क्वेश्चन ये है सर कि क्या एक आदमी के डिफरेंट लाइफ स्पेसेस में डिफरेंट प्रकृति हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। मैं इस पे वैदिक दृष्टिकोण में जाता हूं कि अपना जन्म क्यों हुआ, ठीक है। तो अपने वैदिक दृष्टिकोण में यह बताया जाता है कि ब्रह्म, ब्रह्म मतलब एक यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस की जब एक इच्छा हुई, जब यूनिवर्सल इंटेलिजेंस ने सोचा कि भाई यार मुझको एक सड़क में हायाबुसा चलानी है, फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग फॉर एग्जाम्पल, कहीं यूनिवर्सल इंटेलिजेंस ब्रह्म ने सोचा कि भाई मुझको एक हायाबुसा चलानी है, तो क्या होता है, उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से एक पार्ट निकलता है, एंड दैट पार्ट जो स्प्लिट होकर निकलता है, दैट इज कॉल्ड प्रकृति, दैट इज व्हाई आई एक्सप्लेन प्रकृति, डिवाइन क्रिएशन। अब वो जो पार्ट निकला, अब वो प्रकृति क्या आधार करती है कि ये काम को करने के लिए जो ब्रह्म ने सोचा है, वो काम को करने के लिए किस फॉर्म में मुझको जन्म लेना पड़ेगा, किस प्रकृति में मुझको जन्म लेना पड़ेगा। द मोमेंट उस समय आपकी प्रकृति डिसाइड हो जाती है, ठीक है, देन दैट प्रकृति यहां पे जन्म लेती है, ठीक है। एंड ये शरीर, वो जो सोल है, जो प्रकृति है,
वो तब तक काम करती रहेगी, तब तक काम करती रहेगी, बार बार रीबर्थ लेगी, जब तक जो ब्रह्म की वो इच्छा थी वो कंप्लीट नहीं कर लेगी। जो प्रकृति होती है हम लोग की, वो ब्रह्म की इच्छा के समय डिसाइड हो जाती है, एंड यू डू इट, यू कीप कमिंग इन द सेम प्रकृति अगेन एंड अगेन टिल यू कंप्लीट दैट टास्क। ये वैदिक अप्रोच है, ठीक है। सो द मोमेंट मदर कंसीव्स यू टिल द टाइम यू आर, आप या तो जला दिए जाओ या दफना दिए जाओ, आपकी प्रकृति सेम रहती है। और लाइफ में पीड़ा का कारण तभी हो जाता है जब आप अपने प्रकृति के विरुद्ध वाला काम सोचने लगोगे। सो दिस इज की प्रकृति हमेशा कांस्टेंट रहती है। मतलब हम लोग को कहा जाता है वैदिक दृष्टिकोण में, देयर आर टू थिंग्स कांस्टेंट इन यूनिवर्स, वन इज टाइम एंड वन इज प्रकृति। ये दोनों चीजें फिक्स्ड हैं, और जब जब लोग इसको छेड़ते हैं तो बेस हिल जाता है। मैं भी बताऊंगा आपको कि अपनी प्रकृति कैसे मेंटेन करी जाती है, बट दिस प्रकृति इज फिक्स द टाइम योर मदर कंसीव्स टिल द टाइम यू आर डाउन, यू कम टू डस्ट। ये तब तक फिक्स्ड ही है, ठीक है। अब उदाहरण के तौर में जैसे मछली है, ठीक है, वो उसकी प्रकृति है अपनी, वो पानी में बड़ा कंफर्टेबल है, इट कैन स्विम, इट कैन मतलब आराम से चल सकती है। अब उसकी आजकल नया ट्रेंड आ गया है ना, आप एफर्मेशन कर दो आपको सब मिल जाएगा। पावर ऑफ एफर्मेशन, मैं आजकल वीडियो देखता रहता हूं, पावर ऑफ एफर्मेशन। एफर्मेशंस भी एक्चुअली आपकी प्रकृति के आधार पे होने चाहिए। अब फिश है, एफर्मेशन के लिए नहीं, काश मैं उड़ पाती, आई बिलीव आई कैन फ्लाई, आई कैन बिलीव आई कैन टच द स्काई, दो नो पॉइंट ना, वो एफर्मेशन काम ही नहीं करने वाला भाई, तुम्हारी प्रकृति नहीं है। वैदिक दृष्टिकोण क्या करता है, क्लैरिटी दे देता है, ठीक है। वो ये समझा देता है भाई तुम्हारा मटीरियल ये है ही नहीं, तुम मधुमक्खी हो, तुम शहद बनाओ, तुम रेशम का कपड़ा क्यों बनाने जा रहे हो। दिस इज द वैदिक अप्रोच। वो ये नहीं कहता कि भाई तुमसे सब कुछ हो जाएगा ना। वैदिक अप्रोच हैज डिफाइंड, इट हैज डिफाइंड ऑल दी बाउंड्रीज। द मोमेंट यू रियलाइज कि आपकी प्रकृति क्या है, आपके ऑप्शंस इतने ही हैं, द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ दोज ऑप्शन, आपको लाइफ में पेन आएगा। दिस इज द वैदिक डेफिनेशन व्हाई पेन कम्स इन लाइफ। मैं अभी आपको थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे एग्जांपल से बताता रहूंगा कि कैसा टाइप का पेन आ जाता है। मेरी एक वीडियो मैंने डाली थी एयर एलिमेंट वाला, मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा आपको, है इस पे थोड़ा सा और क्लैरिटी दूंगा कि पेन कैसे आ जाता है जब आप अपनी प्रकृति का पार्ट नहीं प्ले करते। शरद जी, आई थिंक आपको आंसर मिल गया। आई होप मिल गया होगा, ठीक है। लेट्स सी, अब आ जाते हैं कि फायर वाले जो होते हैं वो मीडियम बिल्ड के होते हैं, तो दे हैव गुड एनर्जी, ठीक है। ये वैसे लोग हैं जिनको आप काम बताओ तो भाग पहले जाएंगे, फिर बाद में पूछते करना क्या था, यहाँ पे करना क्या था, ठीक है। जैसे मैं अपने भाई का एग्जांपल बताता हूँ, इसका जब लखनऊ में एक काम होता था, ही यूज्ड टू ट्रैवल, 100 किलोमीटर ट्रैवल करना होता था कि अधिकारी को एक फाइल देनी है, ठीक है। हमेशा अधिकारी के ऑफिस के बाद बाहर इसको याद आता था कि यार फाइल तो लाई नहीं, पहले गए, है ना। तो ये फायर एलिमेंट वालों के साथ ये कई बार हो जाता है कि वो एक्शन करने के लिए इतना तत्पर हो जाते हैं कि जो डिटेलिंग वगैरह पार्ट थी वो छूट जाती है, ठीक है। तभी फायर एलिमेंट वाले पीपल के लिए रिकमेंडेड होता है कि अपने साथ एक असिस्टेंट रखें, एंड प्रेफरेबल असिस्टेंट एयर एलिमेंट को रखें, क्योंकि क्या होगा ना, वो आपको ऑप्शन देता रहेगा, वो आपको इंफॉर्मेशन देता रहेगा रिक्वायरिंग यू टू डू वर्क, ठीक है। अब आ जाते हैं कि फायर किस में खर्चा करता है। यूजुअली एयर खर्चा नहीं करता, एयर अपने बहुत बेसिक्स में खर्चा करता है। स्पेंडिंग हैबिट्स ऑफ एयर इज ऑन बेसिक्स। फायर कब खर्चा करेगा, जब 150 लोग देख रहे हैं तो खर्चा कर देगा, ठीक है। जब कोई देख नहीं रहा होगा वो अपना दुबक के अपना आराम से काम निपटा लेगा और अपना पैदल भी जा सकता है। लेकिन अगर कहेगा कि वहां भीड़ है, वहां लोग देखने वाले हैं, तो भैया लैम्बोर्गिनी को तुम बुक करा दो, रेंट पे हम लैम्बोर्गिनी लेके जाएंगे, है ना। ही स्पेंड्स ऑन, नहीं शो ऑफ, वो शो ऑफ में खर्चा कर देगा, ठीक है। और फायर का क्या है, फायर थोड़ा सोता है बट बहुत कंफर्टेबल सो जाता है। मैं जैसे मेरे फादर फायर एलिमेंट के थे, तो क्या था, वो बैठते थे एकदम से आंख बंद करी और थोड़ी देर बाद उठते थे, बड़ी एनर्जी होती थी उनके अंदर। तो क्या होता था, वो थोड़ा सा मतलब कम सोते हैं, लिमिटेड सोते हैं, बट देयर स्लीप इज साउंड, वो तुरंत रीगेन कर लेते हैं एनर्जी। फायर एलिमेंट वाले ये वो लोग हैं जो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे एक फैमिली में, एक हमेशा एक किसी फैमिली में एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो 4 बजे 5 बजे उठ के दिन को स्टार्ट कर देता है, अलग अलग काम को निपटाना चालू कर देता है। तो यूजुअली फायर एलिमेंट वाले जल्दी उठ जाते हैं,
दे आर क्विक डिसीजन मेकर, दे आर गुड रिस्क टेकर। उनके पास रिस्क लेने की भी क्षमता बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अब क्या होता है, वो फोकस्ड होते हैं और वो विजुअली चीजों को देखते हैं। जैसे मैंने समझाया ना, गांधी जी का जो बंदर है वो सुन नहीं रहा है, वो देखता है और बोलता है। तो फायर एलिमेंट वाले चीजों को विजुअली ज्यादा अच्छे से समझते हैं, ठीक है। एंड फायर एलिमेंट वाले स्टबर्न होते हैं। वो जो नहीं मतलब एक बार ठान ली तो अब मैं भी अपने आप की नहीं सुनता, ये वो वाले जो ये एक बार गोल ठान लेते हैं फिर ये खुद की भी नहीं सुनते, ये वो वाले स्टबर्ननेस है इनके अंदर, ठीक है। एंड यूजुअली इनका अप्रोच यही रहता है कि भाई इतनी मुद्दे इतना ना घुमाओ, मुद्दे की बात पे आओ, ठीक है। दे आर यूजुअली दैट पीपल कि भाई कम टू द पॉइंट, ठीक है। और इनके बहुत सेलेक्टिव क्लोज फ्रेंड्स होते हैं। दे हैव अ वार्म फ्रेंडशिप बट दे क्रिएट एनिमीज, ये एनिमीज बनाते हैं, ठीक है। अब मैं बताऊं तो फायर एलिमेंट वाला झूठ भी बोलता है एंड धर्म के आधार पे उसका झूठ बोलना अलाउड भी है। अब सब लोग थोड़ा सा बड़ा बड़ा वैसा स्टेटमेंट हो जाएगा कि भाई बोला जाता है कि भाई धर्म, ये तो अधर्म वाला काम हो गया, किसी ने झूठ बोल दिया। बट फायर वालों के लिए झूठ अलाउड है। क्यों अलाउड है? बिकॉज वो क्या है ना, वो फ्यूचर की बात को देख रहे हैं, वो फ्यूचर में है। अब फ्यूचर की कोई एक बात आपको प्रेजेंट में बतानी होगी तो कितनी सच्चाई के साथ बता पाओगे? तो क्योंकि वो क्या है ना, फ्यूचर में चले जाते हैं। अब प्रेजेंट वालों को कन्विंस करना है तो कह देंगे अरे नहीं भाई प्रोजेक्ट बनेगा, बन गया है, अरे भाई वो बन रहा है ना। मतलब दे आर यूजुअली क्या है ना, उनके लिए झूठ बोलना अलाउड है। देयर इज वन क्लाइंट फ्रॉम मुंबई जो मेरे से कनेक्ट किया था और यही कहा था, सर आजकल मेरे झूठ पकड़े जा रहे हैं। तो मेरी कंसल्टेशन उस पर हुई थी कि भाई तुम्हारे झूठ पकड़े जा रहे हैं तो तुम्हारा फायर एलिमेंट वीक मार गया। एक्चुअली ये होता है। और जब फायर का झूठ पकड़ा जाता है तो उसका पैसा भी कम हो जाता है। बिकॉज उस फायर को क्या है ना, उसको बातों की शक्ति दी गई है। वो अपने बातों से आपको हुक कर सकता है, वो अपने बातों से आपको मोटिवेट कर सकता है। एंड इफ दैट पावर ऑफ मोटिवेशन नहीं आ रही है तो दैट मींस यू आर ड्रिफ्टेड फ्रॉम योर एलिमेंट, आप अपने एलिमेंट को नहीं पकड़ पा रहे, ठीक है। तो पावर ऑफ मोटिवेशन भी फायर एलिमेंट को ही दी गई है, ठीक है। आई होप फायर का ये रैपअप हो गया है। आप लोग को थोड़ी सी मतलब समझ में आया होगा कि हाँ फायर वाली प्रकृति वाले कैसे होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग वाटर प्रकृति वाले। तो वाटर प्रकृति वाले क्या होते हैं, थोड़ा इमोशनल होते हैं एंड दे आर वेरी गुड एट मैनेजिंग रिसोर्सेस। वो क्या होता है ना, अपनी लाइफ के जितने भी रिसोर्सेस होते हैं वो बर्बाद नहीं होने देते। वाटर एलिमेंट वाले ये वो लोग हैं जो 7 साल पहले जब नल की टोटी टूटती है तो उसके अंदर का जो रबड़ है उसको भी बचा के रखते हैं, क्योंकि भविष्य में कभी एक दूसरा नल लेना पड़ा तो उसपे जो टोटी पे जो रबड़ लगेगी तो मेरे पास होनी चाहिए। तो यूजुअली ये अप्रोच रहती है वाटर वालों की कि हर चीज को ये बचा के रखते हैं और इनके घर के स्टोरेज कभी कंप्लीट नहीं हो सकते। इन लोग को एक घर देना चाहिए और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक और अगर घर मिल जाता तो खुशी हो जाती क्योंकि मैं वहां स्टोरेज कर पाती, ठीक है। तो यूजुअली ये अप्रोच रहती है वाटर एलिमेंट वालों की। ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं। ये लोग क्या होता है ना, इफ दे आर नॉट इमोशनली कनेक्टेड विथ यू दे विल नॉट मतलब दे विल नॉट फील कंफर्टेबल। दे लाइक वार्मथ इन हाउस। वो चाहते हैं कि घर में वार्मथ रहे और अपना डिसीजन ये फीलिंग के आधार पे लेते हैं। कुछ भी बात बोले कि ये वो अंदर से यार अंदर से फील अच्छा नहीं हो रहा है, नहीं करते हैं। ये यूजुअली अपना डिसीजन फैक्ट्स और उस पे नहीं लेते, ये फीलिंग के आधार पे लेते हैं। एंड मेनी अ टाइम्स इफ अ पर्सन इज गुड वाटर एलिमेंट देयर फीलिंग इज ऑलवेज राइट। जो डिसीजन वो फीलिंग के आधार पे लेते हैं वो एक्चुअली में बहुत करेक्ट डिसीजन होता है, ठीक है। अब यूजुअली क्या होता है, ये थोड़ा बातें लंबी चौड़ी करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे मेरे गुरुजी बताते हैं कि इनकी बातें वैसी रहती है जैसे ओशन में नहीं नहीं ऐसे वेव्स ऐसे आती हैं। तो बातें भी इतनी ऐसे नहीं, इसको कहा जाता है वाटर रायता फैला देता है। नहीं कोई भी बात हुई तो अपना रायता अपना सारी बात बता दी और ऐसे रायता फैल गया और वो खुद भूल जाता है कि पॉइंट क्या था उस टॉप का। तो यूजुअली हो जाता है इसके साथ, वो इतनी लंबी बातों में निकलता है कि उसको पता ही नहीं होता बात क्या करनी थी, आए किस बात के लिए थे। तो यूजुअली हो जाता है ये वाटर वालों के साथ। इनके हंगर क्रेविंग्स आती हैं। अगर मान के चलिए इनको टाइमली खाना नहीं मिले तो एकदम से इनके हंगर पैंट्स होते हैं और इनका मूड खराब हो जाता है, ठीक है। तो वाटर एलिमेंट वाले आपको समझ नहीं आएगा कि ये गुस्सा क्यों। अगर कारण ये भी हो सकता है कि अगर उनको ठीक खाना नहीं मिला है तो वो आपसे गुस्सा भी हो सकते हैं। इवन उनको भी नहीं पता होगा कि ये क्यों गुस्सा है, ठीक है। लेकिन कभी भी वाटर एलिमेंट वाले को खाने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अभी रिसेंटली मैंने एक विजय सेतुपति जो
साउथ इंडियन एक्टर है, मैंने उनकी वीडियो देखी, मैंने डाउनलोड तो नहीं करी है, आप लोग भी चेक करिएगा। उन्होंने साफ साफ बोला कि आई डोंट बिलीव ऑन दिस डाइट, इफ आई थिंक इफ आई डोंट हैव अ टेस्टी फूड माय लाइफ वोंट बी टेस्टी। कितना अच्छा बोला, और तभी उनकी एक्टिंग, फर्जी जो सीरीज आई है अमेजोन में, कितनी अच्छी लगी। नाउ इफ आई सी, मैं अगर बताता हूं तो फर्जी अगर सीरीज जिसने जिसने देखी है अमेजोन में, तो उसमें जो शाहिद है, जो शाहिद कपूर जो रोल प्ले किया है, वो उसने फायर एलिमेंट का रोल प्ले किया है। जो जो पुलिस वाला है, जो विजय सेतुपति है, उन्होंने वाटर एलिमेंट का रोल प्ले किया है। एंड जो शाहिद का जो दोस्त है, ही प्लेड एज एन एयर एलिमेंट पर्सन। अब आप थोड़ा सा रिलेट करना चालू करिए, तो आपको जो जो एक्टिविटीज मैंने बताई हैं, उन लोगों ने अपने ही रोल बहुत अच्छे अच्छे से किए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी फैमिली में ये 3 एलिमेंट का होना जरूरी है। इसीलिए यहां हम लोग के वैदिक दृष्टिकोण में कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश। हमेशा ट्रिनिटी की बात हुई है, ट्रिनिटी की बात हुई है, ब्रह्मा विष्णु महेश की बात हुई है। ब्रह्मा इज फायर, विष्णु इज वाटर, महेश इज एयर। नाउ अब आप देखिए, वाटर एलिमेंट वालों के लिए लाइफ में कंफर्ट एंड लग्जरीज इंपॉर्टेंट होती है। अब विष्णु को कौन, विष्णु किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वाटर एलिमेंट वालों को। अब आप विष्णु जी की फोटो देखिए, ठीक है, जब भी वाटर एलिमेंट वाले अपने कंफर्ट को छोड़ते हैं तो लग्जरीज हट जाती हैं। समृद्धि का जो आशीर्वाद है वो वाटर एलिमेंट वाला लेके आया हुआ है। नाउ इफ यू सी, विष्णु आराम से अजगर के ऊपर, आपके जितने गद्दे हैं ना, जितने भी लग्जरियस गद्दे ले लीजिए, लेकिन जिस बार आप अजगर की स्किन छू लेंगे ना, इतने ज्यादा सॉफ्ट आज तक कोई नई चीज है। अजगर के ऊपर बढ़िया ऐसे लेटे हुए आराम कर रहे हैं। जब जब वाटर एलिमेंट वाले आराम अपनी जो कंफर्ट चीज है उनकी लाइफ में, अगर वो उसको छोड़ते हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है उनके घर में फाइनेंसेस लॉस होता है। मैंने वाटर एलिमेंट वाले को जब जब डाइटिंग करते हुए देखा है, तब तक उनके यहाँ लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस। दे शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर फूड, दे शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द कंफर्ट। आप देखोगे वाटर एलिमेंट वाले की वजह से फायर और एयर एलिमेंट वाले काम करते रहते हैं, बिकॉज वाटर एलिमेंट वाला कहता है भाई मुझको ये चाहिए, और वो मूड खराब तो फायर एयर उसके लिए काम करते हैं। तो ये क्या होता है ना, ये तीनों की कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी वैदिक दृष्टिकोण में ट्रिनिटी की बात होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश, बिकॉज ब्रह्मा इज फायर। व्हाट आज भी कहा जाता है कि यूनिवर्स अभी भी बढ़ रहा है, यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपैंडिंग, ये रिसर्च है ना, यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। अब क्या होता है, फायर के लिए रुकना मना है। जो रिवाइटल का एड की जो टैगलाइन है वो बेसिकली फायर वालों के लिए कि भाई रुकना मना है, क्योंकि फायर एलिमेंट वाला जब जब रुक जाता है यूजुअली ऊपर बुला लिया जाता है। तो अभी मैं हमेशा जब कंसल्टेशन होती है तो मैं फायर एलिमेंट वाले का गोल हमेशा ऊपर कर देता हूं। नाउ इफ यू सी, जब जब फायर एलिमेंट वाले के गोल कंप्लीट हो जाते हैं यूजुअली वो चला जाता है, ठीक है। फायर एलिमेंट वाले यूजुअली हार्ट की बीमारियां लेते हैं। जितने भी आप देखोगे, तो अभी जो आई थी स्कैम 1920, अरे वो क्या थी स्कैम जो उसके ऊपर थी, शेयर बाजार के ऊपर, क्या नाम था उस सीरीज का, नाम भूल रहा हूँ, जिसने स्कैम हर्षद मेहता। हाँ यस यस, हर्षद मेहता। इफ यू सी, हार्ट की बीमारी ली। नाउ इफ यू सी राकेश झुनझुनवाला, यस स्कैम 1992, थैंक यू शिल्पा। अब यू सी राकेश झुनझुनवाला, उसका क्या गोल था, ही वांटेड टू स्टार्ट हिज एयरलाइन, ठीक है, उसका एक गोल था। वो अपनी फ्लाइट में बैठ के घर आया और अगले दिन हार्ट अटैक हुआ और चला गया। जब जब फायर वालों के गोल कंप्लीट हो जाते हैं तो यूजुअली बुलावा आ जाता है। नाउ इफ यू सी, फायर एलिमेंट वाले एक ट्रेन का इंजन है, सो देयर इज ऑलवेज, अगर आप पुरानी, अब तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक इंजन आ गए, ईवी का जमाना है, लेकिन अगर आप पहले देखो तो जो इंजन में उछाल मचा होता था, नहीं कोयला डाला जा रहा है सट 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 सट, तो फायर एलिमेंट वालों की लाइफ एक्चुअली बड़ी वैसी ही चलती है, क्योंकि वो लाइफ में बहुत एक्शन करना है और वो इंजन की तरह काम करते हैं। अगर इंजन रुक गया तो पूरी ट्रेन रुक जाती है। तो यूजुअली क्या होता है, फायर एलिमेंट वाले काफी लीडिंग रोल्स पे रहते हैं। और क्या है, बिकॉज दे आर गुड एट टेकिंग रिस्क, तभी उनका हार्ट टोल ले लेता है। यूजुअली एयर वाले माइंड की बीमारियों से जाते हैं। I am using that word, I'm very sorry, I myself is an air element, तभी मैं बहुत डिटेलिंग कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। एयर वाले यूजुअली माइंड बीमारियों के साथ जाते हैं।
फायर एलिमेंट वाले यूजुअली हार्ट की प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस करते हैं, और वाटर एलिमेंट वाले बॉडी में रिटेंशन होने लगता है, एक कोई पार्ट इन्फ्लेमेट होने लगता है, उसकी वजह से इश्यूज आते हैं बॉडी में। अपनी बीमारियां भी फिक्स्ड है कि भाई इसको यही बीमारी हो सकती है। वैदिक पर्सपेक्टिव बहुत डिफाइन कर देता है कि भाई तेरे एक्शन ये है, तू लाइफ में ये कर सकता है, तुझको ये बीमारी हो सकती है, तू ये सोच सकता है। इट इज वेरी डिफाइंड। तभी छह दर्शन में जब आप, मैं कभी उसमें एक्सप्लेनेशन में आऊंगा तब बताऊंगा छह दर्शन में कैसे क्या करा जाता है। ठीक है, मैं वाटर में थोड़ा सा और आ जाता हूँ। वाटर क्या होता है, थोड़ा धीमे धीमे बात करता है, इट गोज एट अ स्लो पेस, धीमे धीमे बात करेगा, स्टेडी पेस पे बात करेगा। ठीक है, वाटर एक ऐसा एलिमेंट है जो भूलता ही नहीं। जैसे एयर अगर गजनी है तो वाटर, जब 1945 में जब मैं उस घर में गई थी तो वो जो लाल बाल्टी जो राइट साइड में रखी थी आज भी मुझको याद है। काश वो दिन है ना, वो उसकी बातें हमेशा पास्ट वाली है। ठीक है, तो यूजुअली जब वो वाटर बात करता है तो पास्ट पे ले जाता है, फायर जब बात करता है तो वो फ्यूचर में ले जाता है, और जब एयर बात करता है तो अभी की बात करता है। ठीक है, और वाटर बहुत पॉजेसिव नेचर का होता है। ठीक है, अगर टेबल में पानी गिर जाए, आप कपड़े से पोंछ भी दो तब भी टेबल में वो चिपका रह जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, वेरी पॉजेसिव नेचर होता है वाटर एलिमेंट का। तभी जितने भी जो वैदिक पर्सपेक्टिव से जो ये शोरूम्स बनाए जाते हैं गाड़ियों के, वो हमेशा बड़े बनाए जाते हैं, बिकॉज अपने वैदिक दृष्टिकोण में ये भी डिफाइंड है। वाटर एलिमेंट क्या होता है, लार्ज, मैंने जैसे बॉडी शेप भी बताया उसका एक्सपैंडेड है, तो उस वो शोरूम भी बड़े बना दिए जाते हैं ताकि जब आप शोरूम में घुसे और वो गाड़ी देखे, आपको उस गाड़ी के साथ पॉजेसिवनेस हो। दिस इज हाउ द वैदिक साइंसेस आर बीन अप्लाइड इन डे टू डे लाइफ। ठीक है, और जब जब फायर एलिमेंट वाले क्या होता है, फायर एलिमेंट वाले जब पैसा बहुत आने लगता है तो एक बड़ा घर लेते हैं, बड़ा किचन है, बड़ा रूम है, बड़ा ऑफिस। मेरे कुछ गुरुजी तो गुजदी बंसल जी तो एक वापस भी भेज देते हैं, भाई तू पुराने वाले में जा। जब जब फायर वाटर के एनवायरनमेंट में चला जाएगा तो ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, तो मीडियम स्पेसेस आर ऑलवेज गुड फॉर फायर एलिमेंट पीपल। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए, जब जब वाटर, जैसे मान के चलिए शेर बहुत अच्छा शिकार करता है, बट इफ यू आस्क हिम टू डू इट इन वाटर, उसके लिए थोड़े चैलेंजिंग हो जाता है। इट इज सेम कि वो एनवायरनमेंट भी उसी हिसाब से बैलेंस कर दिया जाए। ठीक है, अब जो वाटर एलिमेंट वाला होता है वो चेंज को बहुत अच्छा एक्सेप्ट नहीं करता, वो तभी एक्सेप्ट करता है जब वो उस पर कंफर्टेबल होता है और ग्रेजुअली किसी चीज पे बदलता है। ही इज क्वाइट, जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब होल्ड करके वही रखता है, घर की जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सारा वही लेके आता है। अब जैसे गुरुकुल में जैसे नहीं एक सिस्टम होता था, आप लोगों ने भी किससे सुने होंगे कि यार वो गुरुकुल में गया और गुरुजी ने यार 6 महीने झाड़ू पोछा ही करवा दिया। ये कोई बात होती है? हमें तो लगा था कि एकदम से विद्या सिखाने लगेंगे, ये करने लगेंगे, तो झाड़ू पोछा करवा दिया हमसे। एक्चुअली ये सब स्किल्स भी आपके एलिमेंट को पहचानने के लिए करे जाते हैं। एयर अच्छी सफाई करता है, वाटर को चीजें याद रहती हैं, तभी जो गुरुकुल में होता था वो मौखिक चीजें बोली जाती थी, श्रुतियों के द्वारा ज्ञान को ट्रांसफर कर दिया जाता था। यहाँ अपने यहाँ भारत में इन्वेडर सब लोग किताबें चलाए चलाए टहल लेते, चलाए चलाए टहल लेते, वाटर एलिमेंट वाले सब याद रखे हुए थे, उन्होंने वापस लिख दिया। तो अपना सारा शास्त्र अपने साथ है ना, इट इज ऑल अलोंग विद अस। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी वाटर एलिमेंट वाले ये चीजों को ले लेके आगे आए, बिकॉज क्या है ना, वो भूलते नहीं है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, वाटर क्या होता है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ लॉयल रहता है, वो ऐसा नहीं होता कि नहीं, मौका परस्त वाला नहीं होता, वो अपने फ्रेंड्स के साथ लॉयल रहता है। और आई कैन सी जी, आई नो हर एंड और अपने फ्रेंड की जो बच्चे की शादी हुई 20 साल पुराना फ्रेंड, उसकी शादी में भी चले आए। तो सी द टाइप ऑफ लॉयल्टी ऑफ वाटर पर्सन अपने दोस्तों के साथ निभाता है। ठीक है, आई होप ये वाटर एलिमेंट का मैंने चित्रण आपको दे पाया हूं। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूं। आई हैव रिटन दीज पॉइंट्स। मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट एक क्वेश्चन था मेरा। जी जी, अभी पूछूं या लास्ट में? एक पूछ लीजिए। जैसे आपने कहा कि वाटर एलिमेंट वाला को बहुत बड़ा स्पेस चाहिए होता है, और अभी एयर के लिए शायद बोला ना कि उसको बड़ा जगह नहीं चाहिए होता है, तो आपके गुरुजी वापस छोटी जगह पे भेज देते हैं। यस यस। तो लेकिन एक ही घर में अगर वाटर एयर फायर तीनों है, तो जी। वाटर को तो बड़ी जगह चाहिए, और उसके फैमिली मेंबर्स को फिर छोटी जगह में, तो वो कैसे पॉसिबल है फिर? देखिए, फिर हम लोग कलर्स के साथ प्ले अराउंड करते हैं।
फिर क्या होता है, वाटर के रूम में कुछ ऐसे कलर्स का इनपुट कर देते हैं ताकि उसको अपनी जगह अच्छी लगे। अब जैसे वाटर के कलर्स हो जाते हैं ब्लू, तो मैंने देखा जितने भी वाटर एलिमेंट वाले हैं उन लोग को नीला कलर, आसमानी, मतलब ग्रीनरी बहुत पसंद होती है। अब मेरी मम्मी भी थी, इतनी ज्यादा घास, मतलब इतने ज्यादा गमले लगा रखे, तो वो अपना एनवायरनमेंट ऐसे मैनेज कर लेते हैं कि बड़ा बड़ा दिखे, हर चीज वैसे हो जाए। तो वी कैन प्ले अराउंड विद द कलर्स, वी कैन प्ले अराउंड विद द जोन्स। अब क्या होता है, वास्तु में रजस के जोन अलग बांटे गए हैं, सतत के जोन अलग बांटे गए हैं, एंड तमस के, वाटर के जोन अलग बांटे गए हैं। आप सोच लीजिए, आपका प्रकृति है रजस, आप फायर एलिमेंट के हो, लेकिन अगर आप वाटर के जोन्स पे चले गए तो आप कहोगे कि भाई मजा नहीं आ रहा, आई एम फीलिंग इनएक्टिविटी इन लाइफ। अब यही चीज हो जाती है वाटर एलिमेंट वाले को, अगर मैं एयर के जोन में भेज दूंगा तो क्या करेगा, उसके दिमाग पूरे टाइम चलता रहेगा, वो पूरे टाइम सोचता रहेगा, क्योंकि सोचने की स्किल किसके पास है, एयर के पास। तो अब वाटर एलिमेंट वाला एयर के जोन में चला गया तो वो पूरे टाइम ओवर थिंकिंग कर रहा है, तो सबसे पहले उसको शुगर हो जाती है। वैदिक पर्सपेक्टिव से शुगर इज नॉट बिकॉज ऑफ द डाइट इनटेक, इट इज बिकॉज ऑफ द ओवर प्रोसेसिंग ऑफ योर ब्रेन। तो ऐसे मैनेज कर लिया जाता है घर में। वाटर वालों को वाटर के जोन्स में भेजा जाता है, एयर वालों को एयर के जोन्स में, और फायर वाले को फायर के जोन में। ठीक है संगीता जी? ओके ओके। ठीक है, तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूं। Can I और ask one thing? Can I Yes. ask one thing? Actually, when I fill the sheet, it says that air fire, but actually, I think fire water is also like when you were telling me different points. So I'm really confused. According to the sheet, I am air fire, but तो I देखिए, have a lot of आप traits. सब लोग सुन रहे हैं, आई एम रियली कंफ्यूज। तो पहला एलिमेंट एयर हो गया, ये कंफर्म है सबको? ठीक है। Now, air has 4 points in my sheet, right? तो पहला एलिमेंट एयर आ गया, ठीक है। अब हम लोग दूसरे एलिमेंट को फाइनल करने में उतरते हैं, ठीक है। अब ये बताइए कि व्हाट टाइम डू यू लाइक, आर यू कंफर्टेबल वर्किंग एट नाइट, मतलब थोड़ा लेट नाइट कंफर्टेबल होती है काम करने में, कि आर यू कंफर्टेबल वर्किंग अर्ली मॉर्निंग्स? Late is better. तो आप एयर वाटर एलिमेंट की। Okay, but Yes. but मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। यूजुअली क्या होता है, जैसे मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा था ना, तो मैंने बताया था ना कि फायर एलिमेंट वाला सुबह जल्दी उठ जाता है, एयर एलिमेंट वाले यूजुअली रात में ज्यादा एक्टिव है। no, but forcibly we get up early. There's no मैं बताता हूँ, जब options. forcibly जल्दी उठा दिया जाता है कि भाई बिकॉज देयर आर, देखो क्या है ना, वाटर वाला रिस्पॉन्सिबल बहुत है, तो बेचारा अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करके सुबह जल्दी उठ के रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए वो उठ जाता है, ठीक है। बट क्या होता है ना, व्हेनेवर वाटर एलिमेंट पीपल गेट्स अप अर्ली, तो दिन थोड़ा लिथार्जिक चला जाता है, नहीं सब चीजें स्लो स्लो हो जाती है, ठीक है। इफ यू मतलब आप कंफर्ट, अपने कंफर्ट के हिसाब से अगर आप उठोगे तो दिन बहुत स्मूथ जाएगा। But if somebody is a very good decision maker and wants to take a lead also, so that is why I'm confused. Like I feel that I have quite traits of fire as well. So that's why one cannot have all three, right? No, one can have three. मैंने बताया था ना शुरुआत में, there are okay. certain proportion. अब जैसे मैं सही बताऊं, if I tell you my element is 40% air, 30% water, 30% fire. तो क्या है ना, थोड़ा सा काफी इवन ले लेता हूं, that is why I gel along with everyone. मैं सही बताऊं, मेरा तो कोई मतलब ऐसा नहीं कि नहीं मैं किसी के साथ अनकंफर्टेबल हुआ, क्योंकि मैं फायर वाले के साथ फायर जैसा हूं, मैं वाटर वालों के साथ वाटर जैसा हूं, मैं एयर वालों के साथ एयर जैसा हूं, ठीक है। अब क्या होता है ना, इसी में प्रोपोर्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब जैसे मान के चलिए आप काफी बैलेंस नेचर के होंगे, इसलिए डिसीजन मेकिंग भी हो जाता होगा, बट अपने लिए डिसीजन मेकिंग में बड़ी दिक्कत हो जाती होगी। तो यूजुअली एयर वालों के साथ ऐसा होता है, वो अपने लिए नहीं सोचते, वो पूरे सबके लिए ज्यादा अच्छे से सोच लेते हैं। Okay, thank you. मैं थोड़ा सा इसमें और अभी जाऊंगा, मैं थोड़े और एग्जांपल समझाऊंगा, तो मे बी उसके बाद शायद क्लियर हो जाए। इफ दैट डाउट स्टिल परसिस्ट, आई विल श्योरली कम बैक टू। ठीक है, तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूं आप लोग को। आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट जो मैंने प्लान किया था आप लोग को सेकंड लेवल ऑफ इंटरप्रिटेशंस के लिए, जो मैंने प्लान किया था कि भाई ये चीजें आप देख सकते हो। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट फॉर योर रेफरेंस इन द फ्यूचर। ठीक है, अब हम लोग अगले में आ जाते हैं कि ये सब चीजें सीख ली,
भाई ठीक है, पता चल गया कि आई एम एयर फायर, आई एम वाटर एयर, अब इसका करना क्या है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इट, क्या यूज है इसका, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग इसके एप्लीकेशन पार्ट में, कि अगर मुझको पता चल जाता है कि मेरा प्रकृति क्या है, इसको अप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं मैं एक बार आपको दिखाता हूं, मेरे पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, हाउ डू यू अप्लाई इट, ठीक है। अब इफ यू सी द जनरल एप्लीकेशंस, बट इंपॉर्टेंट, एक इसको आयुर्वेद में अप्लाई किया जाता है। आयुर्वेद में इसको जैसे मैंने बताया ना, नाड़ी एनालिसिस की जाती है। अब एयर एलिमेंट वाले इन जनरल उनके अंदर की वात बढ़ती है, तो उसको वात को कंट्रोल करने वाली चीजें दी जाती है, ठीक है। ये वात पित्त कफ आयुर्वेद में अप्लाई हो जाता है, ये वास्तुशास्त्र में अप्लाई होता है। जैसे मैंने बताया था ना कि हर जोन, हर एलिमेंट, वास्तुशास्त्र में भी जो सर्कुलर वे में जब जोन्स बांटे जाते हैं, तो हर जोन रजस सतत तमस के जोन्स बांटे गए, ठीक है। अब अगला आ जाता है मैरिज डिसीजन में। मैरिज डिसीजन देखिए, पहले क्या होता था, ये जो मैरिज की प्रथा है, इसका पर्पस क्या था, एंड व्हाई महावास्तु बिलीव्स कि भाई मैरिज का डिसीजन प्रकृति के आधार पे होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज इट इज मोर एक्यूरेट। देखिए पहले जब जो शादियों के डिसीजन लिए जाते थे, वो देखा जाता था एक चीज कि हमारे घर में कौन सा एलिमेंट नहीं है, ठीक है, पहले ये चीज देखा जाता था। अब जैसे मान के चलिए आपके घर में सिर्फ एयर ही एयर भरे हुए हैं, तो क्या होगा ना, सिर्फ हवा हवा में ही बात रहती है, ठीक है, स्टेबिलिटी और नहीं सीरियसनेस वाटर एलिमेंट लाता है लाइफ में, ठीक है। तो जब दूसरे घर में जाया जाता था, वो वहां पे ये नहीं देखने जाया जाता था कि हाँ नाक इसकी ऐसी है, समोसा इसने टेस्टी बनाया है, कि चाल देखो कैसी है। आजकल तो जो फिल्मों में चालू हो गया प्रकरण कि भाई ये सब चीजें जज करने के लिए, वहां पे एक्चुअली जब फैमिली जाती थी तो सामने वाले को जज करने जाती थी कि ये प्रकृति हम लोग के लिए नीडेड है कि नहीं, एंड देयर आर वेरिड कॉम्पोजिशंस। अब जैसे मान के चलिए एक आग है, एक पानी है, ठीक है, दोनों की अप्रोचेस अलग हो गई ना, एक एक्शन ओरिएंटेड है, एक भक्ति पे करता है। तो मेरे पापा और मम्मी एक आग थे और एक पानी थे, ठीक है। माय फादर वाज फायर एलिमेंट, माय मदर वाज वाटर एलिमेंट। तो जब लाइफ में सक्सेस हुई तो पापा कहते थे मेरे कर्मों की वजह से हुई, ठीक है। मम्मी कहती थी मैंने भाई 1.5 किलो का जो घी का जो चढ़ाया था भगवान में, और जो मैंने नवरात्रों में जो 9 दिन का व्रत रखा था, वो उसके वजह से हुई। तो दोनों के पर्सपेक्टिव अलग थे कि सक्सेस क्यों हुई, और दोनों इसी में लड़ जाते थे, ठीक है। मुझको एज अ थर्ड पर्सन समझ में आता था कि दोनों के तो वैलिड पॉइंट्स हैं। अब मैं रियलाइज करता हूँ कि वैलिड पॉइंट दोनों के थे, कि भाई हो सकता है नवरात्र में व्रत रख के जो उन्होंने अपना करा उसकी वजह से हो गया, और हो सकता है कि पापा जो सब सुबह उठ के वहां गए उसकी वजह से हुए। दोनों के वैलिड पॉइंट्स है, बट क्या है ना, दोनों की अप्रोचेस अलग हो गई, तो बहस हो जाती थी। तो एलिमेंट्स के आधार पे अगर हम लोग मैरिज डिसीजन मेकिंग करते हैं तो बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि भाई साहब ये एलिमेंट का है, इसके में ये सॉफ्टवेयर है ही नहीं, ये सुनेगा नहीं, और आप यहाँ निडोर भेजो, ये मेरी सुनते नहीं है, कोई तो सुनता ही नहीं है मेरी। अब आपकी अगर ये परेशानी है और आपका पार्टनर फायर एलिमेंट का है, तो वो नहीं सुनेगा। एंड इफ यू वांट समवन टू लिसन टू यू इन लाइफ, गेट एन एयर एलिमेंट पर्सन, क्योंकि वो सुनता है ना। वो गांधी जी का वो वाला बंदर है जो मुंह में हाथ लगाए हुए है, वो सुन रहा है और देख रहा है, बोलता नहीं है। दैट पर्सन विल लिसन टू यू एंड ही विल गिव यू द ऑप्शंस, ठीक है। तो मैरिज डिसीजन मेकिंग के लिए ये एलिमेंट की नॉलेज बहुत अच्छी क्रूशियल हो जाती है, क्योंकि क्या हो जाता है, यू आर वेल अवेयर कि सामने वाला पार्टनर है क्या। नहीं तो यहाँ पे तो पंडित जी बस बता ही रह जाते हैं 24 गुण मिल रहे हैं, और पता चला घर में चूत बजाई चल रही है ना। मैं बता रहा हूँ ना कि भाई उसके आधार पे और ये एलिमेंट्स के आधार पे ज्यादा प्रिसीजन हो जाता है। यू आर वेरी मच अवेयर कि सामने वाला पार्टनर है कैसा। हर्षिता जी आपका सवाल। सर मैं एक्चुअली ये बोलने वाली थी कि आपकी बातों से मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि पहले जो अपनी हिस्ट्री या हम कुछ भी मूवीज देखते हैं, जोधा अकबर या कुछ भी ऐसी मूवी देखते हैं, तो उसमें महलों में ना रानी का कक्ष अलग था, राजा का कक्ष अलग था। मतलब नॉर्मली मॉडर्न फैमिलीज में योर मॉम एंड डैड आर लिविंग टुगेदर, दे आर स्टेइंग इन द सेम रूम, बट एलिमेंट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो दे वर एक्चुअली प्लेस्ड इन देयर जोन्स। सो मे बी वेरी वेल करेक्ट। अब क्या हो गया, ये थोड़ा सा टॉपिक से वैसा हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली वास्तुशास्त्र भी राजाओं के लिए अलग होती थी और प्रजा के लिए अलग होती थी। तो दैट इज व्हाई जो वास्तु के जो एप्लीकेशंस हो गई वो थोड़ी डिस्टॉर्टेड हो गई, और जो साइकिल से चलने वाले जो पंडित जी है वो पता नहीं, उनको खुद नहीं पता कि वो राजा की वास्तु लगा रहे हैं कि प्रजा वाली वास्तु लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसी में थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन स्ट्रीमलाइन कर गई अपने में, और ये जो इसीलिए महावास्तु हैड वर्कड ऑन इट एंड पूरा क्लियर कट कर दिया कि हाँ ये चीजें उनके लिए अच्छी है, ये चीजें इनके लिए अच्छी।
दिस इज डेफिनेटली अ गुड पॉइंट। ये होता था, ये एप्लीकेशन करी जाती थी, इट वाज अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स, एंड दैट इज व्हाई सब भाई अच्छी समृद्धि रही, सब लोगों ने एंजॉय किया। अब आज भी हम लोग उनके बारे में करते हैं कि हाँ यार क्या बढ़िया लाइफ थी, है ना, आज भी मतलब इमेजिन करते हैं। अब भाई फायर वाले को लड़ने में मजा आ रही है, मैं बीइंग एन एयर एलिमेंट में हमेशा सोचता था भाई साहब ये युद्ध के लिए क्यों चला आता है, ठीक है, क्योंकि फायर वाले को वही थ्रिल आ रहा है। मुझको अगर ज्ञान करने में थ्रिल आ रहा है, इफ आई लाइक, मैं नॉलेज गेन करके मजा लेता हूं, तो फायर वाला किसको फाइट करके मजा ले रहा है। तो एवरीवन हैज देयर ओन मोड ऑफ एंटरटेनमेंट्स, और ये वेरी वेल डिफाइंड है। इसीलिए जब राजा जाता था तो वो धार्मिक काम माना जाता था। धार्मिक क्यों काम माना जाता था? क्योंकि वो उसने धारण करके रखा है। व्हाट इज धर्म? जो आपने धारण करके रखा है, जो प्रकृति आपकी है, एंड इफ यू आर एक्टिंग अकॉर्डिंग टू योर प्रकृति, यू आर डूइंग अ धार्मिक वर्क, अदरवाइज ये धार्मिक नहीं है, ठीक है। अब जैसे फायर के लिए झूठ बोलना अलाउड है, वो धार्मिक काम है उसके लिए। मेरी आवाज आ रही है? परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। अब अगले पॉइंटर्स में आ जाते हैं कि मैरिज डिसीजन मेकिंग में ये प्रकृति एनालिसिस बहुत अच्छे से काम आती है। इट मेक्स यू मोर, इट हेल्प्स यू टेक अ मोर अवेयर डिसीजन मेकिंग, वो बहुत अवेयर दे देता है डिसीजन मेकिंग में। फिर आ जाते हैं हम लोग क्लैरिटी इन लाइफ। अब क्लैरिटी इन लाइफ से मैं एक एग्जांपल बताता हूं जो मेरे गुरुजी ने सबसे पहले एक बार शेयर किया था। वो बोले कि तुम सफेद कुर्ता पैजामा में सड़क में टहल रहे हो, ठीक है, तुम सफेद कुर्ता पैजामा में जा रहे हो, ठीक है, और रास्ते में एक पिग नाली में लौट रहा है, ठीक है, तुम सफेद कुर्ता पैजामा में निकले, वो पिग नाली में लौट रहा है, और तुमने कहा कि अरे भाई व्हाई यू आर डूइंग सच एन अनहाइजीनिक वर्क, तुम बाहर आ जाओ, ठीक है, तुम बाहर आ जाओ, इट इज नॉट दैट हेल्दी। पिग वहां से ऊपर देख रहा है लुटते लुटते कि पागल हो गए। आप सफेद कुर्ता में बाहर उसको जज कर रहे हो कि भाई तुम नाली में ना लौटो, तुमको तुम्हारे लिए हेल्दी नहीं है, तुम उसके जजमेंट अपने आधार पे उसका जजमेंट कर रहे हो, एंड ही इज एंजॉयिंग दैट पार्ट। अब क्या है, कंफ्लिक्ट यही हो जाता है, वो वहां मजे ले रहा है और आप नीचे कीचड़ में उतर गए। आप नीचे कीचड़ में उतर गए कि नहीं भाई आज इसको हाइजीन सिखाई देंगे, आप उसको उठा के फिर ऊपर ले आए। इसमें गलती किसकी? गलती सफेद कुर्ता पजामा पहन के जब आप उसको सिखाने के लिए उतरे, ठीक है, ये गलती है भाई, वो उसकी प्रकृति है, ही इज एंजॉयिंग दैट पार्ट, व्हाई आर यू जजिंग हिम ऑन दैट? भाई वो प्रकृति का पार्ट है। ये हम लोगों ने बहुत पुराना किस्सा सुना था ना, हम लोग के बच्चों में कहानियां होती थी कि मेढक है, मेढक से स्कॉर्पियो कहता है कि भाई मुझको तैरना नहीं आता, तू वो मेरे से नदी पार करा दे, मुझको उस पार्ट पे जाना है। तो कहता है ठीक है, मेढक कहता है तुम हमारे पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुमको नदी पार करा देता हूँ, ठीक है। तो रास्ते में स्कॉर्पियो ने मेढक के दबोच लिया, तो मेढक कहता है यार मैं तो तेरी हेल्प कर रहा था, तू मुझको ही मारने लगा। तो कह रहा तू अपने पार्ट कर रहा था, मैं अपनी प्रकृति का पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ, आप सांप को दूध पिलाते हैं रोज रोज सुबह सुबह, उठ जा बेटा, लो दूध पियो दूध पियो, ठीक है। एक दिन वो प्यार के आधार पे आपको डसेगा और आप कहोगे यार हद हो गई यार, इसको जीवन भर मैंने दूध पिलाया और इसने मुझी को डस लिया। दिस इज द बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग। एक बार आप जब को प्रकृति एनालिसिस पता चल जाती है तो आपको बिहेवियर पता चल जाता है, वो व्यक्ति किस चीज में कैसा रिएक्ट करेगा ये पता चल जाता है। तो क्या होता है ना, लाइफ के वो क्वेश्चंस कि यार मैंने इसके लिए इतना सब किया, इसने मेरे साथ ऐसे करा क्यों? इट हेल्प्स यू टू मूव ऑन इन लाइफ कि भाई साहब वो उसकी प्रकृति थी, एंड वो उसने जो किया वो उसके धर्म का पार्ट था, एंड आप अपने धर्म का पार्ट करते रहिए, ठीक है। तो बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग और इट हेल्प्स यू मूव ऑन इन लाइफ कि भाई साहब ये जो भी हुआ आपके साथ, इट वाज ओके एंड इट वाज पार्ट ऑफ दैट प्रकृति जो हुई, जो यहाँ पे अप्लाई हुई। मैं एक बार कास्ट कर देता हूं, आप लोग को अगला पॉइंटर्स दिखाता हूं। हैप्पीनेस फैक्टर, हर प्रकृति के अपने अपने हैप्पीनेस फैक्टर हैं। जैसे मैं बता रहा था ना, वाला ज्ञान लेके बहुत खुश रहता है, वाटर एलिमेंट वाला सेविंग करके, सेविंग की भी फैक्टर वाटर वाले को दी गई है। मैं सही बताऊं, प्रखर जी आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। सबको
आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। कैन यू प्लीज रिपीट? एक नहीं होगा। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। कैन यू प्लीज रिपीट? Let him reconnect again, probably. Yes, he is back. यस, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, परफेक्ट। अब जैसे मैं बताता हूँ, जी वो स्पॉटलाइट कर दीजिएगा, मुझको शक्ल कर दिखे। दिया है, लेकिन आपका बैंडविड्थ कम है इसलिए वो थोड़ा छोटा अच्छा हो- अच्छा, जी जी जी, परफेक्ट है। तो अब जैसे मान के चलिए एक सर्टेन अमाउंट आप तीनों को दीजिए, ठीक है। एयर वाले को याद ही नहीं रहेगा, जबकि वो बहुत श्रूडली करेगा, लेकिन वो पैसा बचा के नहीं ला पाएगा। फायर वाला एक भविष्य के एक्ट पे वहां उसको एक्स्ट्रा पैसा दे के चला आएगा, और वाटर वाला वो काम कर भी लेगा और उसके पास पैसा भी बचा होगा, ठीक है। ये अप्रोच हो जाती है, क्योंकि वाटर वाले का ये पार्ट है चीजों को रिटेन कर लेना। उसको जो इनेट स्किल दिया गया है रिटेंशन का, ठीक है, वो चीजें रिटेन कर लेता है। इसीलिए जब जब बॉडी कोई चीज रिटेन नहीं कर पाती तो आयुर्वेदाचार आपके कफ को बढ़ाने का प्रयास करता है, ताकि वाटर हैज द पावर टू रिटेन। आप एक ग्लास में ग्लूकोज डालिए और मिला दीजिए, ग्लूकोज दिखेगा नहीं, बिकॉज इट हैज द पावर टू रिटेन। तो भारत इन जनरल अगर मैं बोलूं, इंडिया इज अ वाटर कंट्री, वो कंट्री ही वाटर है, ठीक है। तो ही भी आप देखिए अपने यहाँ बढ़िया छुट्टियां हैं। आई थिंक दुनिया में सबसे ज्यादा छुट्टियां हम लोग के यहाँ होती हैं। वी डू कंसीडर आवर कंफर्ट एज अ प्रायोरिटी। हम लोग की जब जब छुट्टियां होती हैं हम लोग मीठा खाते हैं, बिकॉज वाटर वालों के लिए मीठा बहुत रिकमेंडेड किया जाता है, ठीक है। एंड इफ यू सी, आज भी इंडिया में सोना गोल्ड सबसे ज्यादा सबके घरों में स्टोर्ड है अपने। तो नहीं, हम लोग के पास सेविंग सबसे ज्यादा है। बाहर ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था और गजनी यहाँ पे 200 करोड़ के ऊपर कमा रही थी। आप देख रहे हैं डिप्रेशन वगैरह का, कभी मुझे नहीं फाइनेंशियल डिप्रेशन हुए बाहर पूरा वर्ल्ड इफेक्ट होता था, कभी इंडिया इतना नहीं इफेक्ट हुआ इस पार्ट में। प्रमोद जी, मेरा स्पॉटलाइट हो गया है क्या? हाँ हो गया। अच्छा आपकी अच्छा आपके आपकी कैसी दिख रहा है अभी? अच्छा, आपकी स्पॉटलाइट में एक सेकंड। आपको पिन किया हुआ है। ओके, मैं अपनी शक्ल नहीं देख पा रहा था एक्चुअली, तो थोड़ा सा ठीक है। परफेक्ट है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी आखिरी एप्लीकेशन, कि भाई साहब इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, समय बहुत बचा देता है। अब मेरे गुरु ने एक किस्सा बताया था कि टाइगर और गधे के बीच में बहस चालू हुई। गधे ने कहा कि ग्रास इज रेड। टाइगर कहता है कि पागल हो गए हो क्या, साफ साफ दिख रहा है कि हरी है ग्रास, तुम कह रहे हो ग्रास रेड है। तो गधा कहता है कि भाई साहब अगर तुम इस एंगल से देखो, और ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऐसा पड़ रहा है, इसके अगर इस एंगल से देखते हैं हम लोग, तो ग्रास का कलर रेड है। और भयंकर बहस हो गई दोनों में, और गधा कह रहा है कि ग्रास रेड है और वो शेर कह रहा है कि भाई ये तो हरी है। और भयंकर बहुत बिल्कुल मारकाट में बहस आने वाली थी। तो लोगों ने कहा भाई साहब इनको राजा के पास ले चलो। तो लोग राजा के पास पहुंचे, ये गधा और टाइगर पहुंचे राजा के पास। तो गधे ने सभा में चालू करा कि भाई राजा साहब, मैं कह रहा हूं जब मैं वहां गया तो अगर मैं उस एंगल में, राजा वहां बैठा हुआ है, राजा रजस प्रकृति वाला सुनता है नहीं, 2 लाइन उसने सुनी और वो बैठा हुआ और पका रहा है कि भाई गधा 3 घंटे से ये समझाने में लगा हुआ है कि ग्रास इज रेड। गधे ने आधे पौन घंटे अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन दिया और आखिरी में कह दिया हैंड्स प्रूफ ग्रास इज रेड। तो राजा से पूछा गया कि भाई सजा किसको देनी है? तो राजा ने कहा कि गधे को बाइज्जत बरी कर दूं, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। सभा शौक। टाइगर कहता है कि राजा आप तो राजा हैं, आप जो सजा मुझको दे रहे हैं मुझको एक्सेप्टेबल है, लेकिन राजा मैं समझा नहीं, घास तो हरी होती है, तो आपने मुझको सजा क्यों दी? कह रहा तुमको इसलिए सजा दी कि अगर तुम उस गधे की बात मान जाते
कि ग्रास रेड है, तो आज इस सभा का 3 घंटे का समय ना बर्बाद होता और तुम्हारे जीवन का 6 घंटे वहां ना बर्बाद होते। सजा तुमको मिलनी चाहिए। ठीक है, प्रकृति की एप्लीकेशन एक बार जब आप सीख जाते हो तो अपने जीवन का बहुत विशाल समय बच जाता है आपके पास, क्योंकि फिर आप गधों से बहस करना बंद कर देते हो कि ग्रास इज रेड। ठीक है, तो ये बड़ा मेजर एप्लीकेशन हो जाता है, क्योंकि जीवन में 2 चीजें कांस्टेंट है, एक आपकी प्रकृति और एक आपका समय, और आपने अगर समय ऐसे बर्बाद कर दिया तो बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए आप। ठीक है, तो एंड थोड़ा करियर से रिलेटेड एक्टिविटीज में बता देता हूं, बिजनेस में कैसे अप्लाई हो जाती है ये चीज। बिजनेस में क्या हो जाता है, सबसे पहला स्टेप आ जाता है ये सेल्फ रियलाइजेशन का। जैसे मैंने बताया था ना, प्रकृति एनालिसिस सबसे पहला मेथड है अपने बारे में जान के अपने वैदिक विद्याओं के विषय में आने का, इन विधाओं को एक्सप्लोर करने का। ठीक है, दूसरा हो जाता है कि सही डिसीजन मेकिंग, करियर डिसीजन मेकिंग पाथ इसके आधार पर बहुत अच्छे से लिए जा सकते हैं। ठीक है, कि आपकी प्रकृति क्या है और आप उस हिसाब से करियर अपना पिक कर लीजिए, क्योंकि वो करियर आपके लिए एफर्टलेस होगा। मैं सही बताऊं, मेरे लिए प्रेजेंटेशन करना, बातें करना एफर्टलेस है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक स्टडी की बात करता हूं तो स्टेज का फियर डेथ से ज्यादा है। एक स्टडी करी गई तो देखा गया स्टेज में, मंच में बोलने का फियर इज मोर देन डेथ। मतलब लोग कह देंगे मार डालो हमको, लेकिन स्टेज में बुलवाओ नहीं हमसे। तो आप समझ रहे हैं वो कितनी बड़ी एफर्ट हो गया। कुछ के लिए बोलना बड़ा एफर्ट है, तो फियर ऑफ स्टेज इज गोइंग अबव द फियर ऑफ डेथ। तो जब आप करियर पाथ आपके प्रकृति के अनुसार आप पिक करोगे तो बड़ा एफर्टलेस हो जाता है। अब जैसे मान के चलिए मछली से कहिए तैरने के लिए, तो बड़े मजे में तैरेगी ना। आप ईगल से कहिए बढ़िया हवा में आसमान से पार करते चले जाओ, तो वो बड़े आसानी से पार करते हुए चला जाएगा। तो यू कैन एंजॉय लाइफ, क्योंकि जो आपका वर्क है वो आपके लिए एफर्टलेस होगा। मैं सही बताऊं, मेरा काम है टू गिव ग्रोथ एंड टू रिजॉल्व प्रॉब्लम। मैं सही बताऊं, अगर 3 दिन मुझसे कोई प्रॉब्लम या ग्रोथ की बात नहीं करता है तो मैं डिप्रेशन में चला जाता हूं, क्योंकि भाई साहब कोई तो प्रॉब्लम लेके आओ, कोई तो हमसे ग्रोथ की बात करो, बिकॉज दैट इज माय एक्टिविटी। वो अगर मैंने नहीं किया तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। सोच लीजिए, मधुमक्खी कहेगी नहीं आज यार शहद नहीं निकालेंगे, आज नहीं मन है ना, तो वो पार्ट नहीं अच्छा है। यू शुड पिक दैट एक्टिविटी जो आपके लिए एफर्टलेस हो। तो ये चीज आ जाती है कि करियर जो पाथ होते हैं इसके आधार पे बड़े अच्छे से लिए जा सकते हैं। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूं, आई हैव रिटन द पॉइंटर्स। ठीक है, अब जो सेल्स और मार्केटिंग की टेक्निक होती है, अब जैसे मान के चलिए फायर एलिमेंट वाले को कैसे बेचना है उसके तरीके अलग होते हैं, एयर एलिमेंट वालों को कैसे देना होता है उसके तरीके अलग होते हैं, और वाटर एलिमेंट वाले के लिए कैसे बेचना है। जैसे मान के चलिए वाटर एलिमेंट वाले के साथ आप डील कर रहे हैं तो बढ़िया उससे नहीं एक आत्मिक इमोशनल बॉन्ड बनाइए, तब उसके साथ सेल कर पाओगे, है ना। मतलब ये अलग टेक्निक है। सेल्स टेक्निक में बहुत अच्छे से यूज आता है ये एलिमेंट्स की एनालिसिस, किसको कैसे बेचना है ये चीज पता हो जाती है। फिर पार्टनरशिप के लिए, अब जैसे मान के चलिए इफ वी आर गेटिंग इनटू अ पार्टनरशिप फॉर अ बिजनेस या शादी की पार्टनरशिप जो मैंने डिस्कस कर लिया मैरिज डिसीजन मेकिंग में, तो क्या हो जाता है ये पता हो जाता है यार इस प्रकृति वाले के साथ मेरी बनेगी। जैसे मेरे एक क्लाइंट है, मैंने उसको कहा कि यार पार्टनरशिप कर लो, तो कहते प्रखर जी मैं पार्टनरशिप कर तो लूंगा लेकिन आई डोंट वांट एनीवन कि मुझको वो बोले कि यार ये करो। तो उसके लिए उसके लिए ऐसा एलिमेंट ढूंढा जाएगा। तो मतलब फायर वाले को हम फायर वाले के साथ पार्टनरशिप नहीं कराएंगे, क्योंकि वो फायर वाले की डिमांड थी कि मैं नहीं चाहता कि मुझको कोई आके ये बोल दे। अब ये कौन नहीं बोलेगा उससे, एयर वाला नहीं बोलेगा, तो मैं उसके साथ पार्टनरशिप करा दूंगा। तो पार्टनरशिप डिसीजन मेकिंग करी जाती है। अब जैसे मान के चलिए आपको रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना है आपके बिजनेस में, जो रिक्वायरमेंट है, एंड इफ यू वांट अ पार्टनरशिप कि भाई रिसोर्सेज मैनेजमेंट होने चाहिए, तो किससे पार्टनरशिप आप करोगे, वाले से, क्योंकि ही इज गुड एट मैनेजिंग रिसोर्सेज। ठीक है, तो पार्टनरशिप डिसीजन मेकिंग कर ली जाती है। इसका बहुत अच्छा डिसीजन मेकिंग आ जाती है रिक्रूटमेंट के आधार। जो काम है अगर आपको पता चल जाए कि सामने वाले की प्रकृति ये है, मेरा काम ये प्रकृति वाला बड़े आसानी से कर लेगा। जैसे मैं बोलूं एयर एलिमेंट वाला बेशरम होता है, तो अगर आपके इफ यू नीड दैट जॉब प्रोफाइल इज टू एक्ट बेशरम, आप 2 एलिमेंट वालों को ले सकते हो, फायर को ले सकते हो, एयर को ले सकते हो, क्योंकि फायर वाला बेच देता है, वो कुछ भी कहानी उठा के बेच देता है ना। लेकिन अगर काम है जो कोई और चीज से रिलेटेड है तो उसको वाटर वाले को उस रोल के लिए ना पिक करिए,
स्टार्टअप डिसीजन मेकिंग, जब स्टार्टअप डिसीजन मेकिंग होती है तो व्यक्ति को अपने प्रकृति के आधार पे डिसाइड करना चाहिए कि विल ही गिव अ नॉलेज बेस्ड सॉल्यूशन, विल ही गिव अ एक्शन बेस्ड सॉल्यूशन, और विल ही गिव अ रिसोर्स मैनेज बेस्ड सॉल्यूशन। और अगर वो आइडिया उसका है, यूजुअली क्या होता है, रजस प्रकृति वाले ये स्टार्टअप अच्छा करते हैं क्योंकि फ्यूचर का दिख जाता है ना कि भाई साहब इसके आगे डिमांड आने वाली है, उनको फ्यूचर दिखता है। तो ये स्टार्टअप का डिसीजन वो ज्यादा अच्छा लेते हैं, एंड दे शुड मेक द टीम अलोंग विद द एलिमेंट्स, कि भाई आईटी वाला पार्ट संभालना है तो उसको एयर एलिमेंट वाले को दे देना चाहिए, अगर स्टॉक वेयर हाउसिंग और ये संभालना है तो उसको वाटर एलिमेंट वाले को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी चाहिए। तो स्टार्टअप डिसीजन मेकिंग एंड गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द स्टार्टअप, इस पे यूज आ जाता है। ऋषित, आपका सवाल। प्रखर जी, अगर कोई इंसान एक कंपनी में है लाइक जिसमें 3 पार्टनर हो, तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं एक कंपनी से जुड़ा हूं अभी जिसमें हम 3 पार्टनर है, और आपके बातों से अगर मैं सोचूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पार्टनर फायर है, एक वाटर है, और मुझे पता है मैं एयर हूं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये तीनों एक साथ एक कंपनी में ठीक है? लाइक विल द कंपनी ग्रो? यस, दिस इज द परफेक्ट एंड आइडियल कॉम्बिनेशन, क्योंकि वहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं। ठीक है, अब क्या होगा, एक आइडियाज का इनपुट देगा, एक रिसोर्सेस का इनपुट देगा, और एक विजन देगा कंपनी। तो आई थिंक दिस इज आइडियल कॉम्बिनेशन कि ये हो। एंड यूजुअली क्या कर लिया जाता है, जब ये कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है, यूजुअली कंपनीज में अगर ये तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है तो वी हायर सच टैलेंट फ्रॉम द आउटसाइड, उसको फिर आप पेरोल में रख के उसको कंपनी में ऐसे जोड़ते हैं। तो दिस इज एन आइडियल, मतलब तीनों अगर एलिमेंट है तो यू आर वेरी लकी, एंड आई एम वेरी श्योर दिस कंपनी विल ग्रो वेरी वेल। थैंक यू। Sir, what if like as an heir, I am starting a company, but I don't have a fire or a water along with me. Yes. So, in that case, what happens? Yes. Like, ठीक है, देखिए क्या होता है, फायर वालों के लिए मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होती है, एयर वालों के लिए ट्रांसपोर्टेशन एंड गिविंग इंफॉर्मेशन अच्छा रहता है, एंड वाटर वालों के लिए रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आई वुड सजेस्ट, जो भी आप कंपनी कर रहे हो, यू शुड फोकस कि एक जगह से सामान इधर आ जाए, या एक इंफॉर्मेशन इधर से इधर आ जाए, तो दैट पार्ट विल बी गुड फॉर यू, क्योंकि इंफॉर्मेशन का इधर से इधर जाना एयर की ड्यूटी हो जाती है। तो इन दैट कंपनी आई वुड सजेस्ट कि ये वाला रोल आप लेना, और जो रिसोर्स वाला रोल है, यू शुड हायर अ टैलेंट फॉर इट, क्योंकि एक जो भी सोल्यूशन आप दोगे, इट विल ऑब्वियसली रिक्वायर आइदर अ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन और ट्रांसमिशन ऑफ एनी रिसोर्स और एनी सर्विस। तो आप इंफॉर्मेशन के वाले पार्ट को कमांड करना, बीइंग एन एयर एलिमेंट, क्योंकि वो आपके लिए एफर्टलेस होगा। फिर कोरियर मैनेज करना, वेयर हाउसिंग करना, दैट विल बी अ टास्क फॉर यू, वो आपके लिए एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो पिक दैट पार्ट जो आपके एलिमेंट के आधार पे, पिक दैट रोल जो आपके एलिमेंट के आधार पे हो, एंड हायर द अदर पर्सन जो बाकी रोल्स के लिए। डिड यू गेट द आंसर, या अभी भी डाउट है? sir, actually, why I'm confused is कि I'm air, or like air is always confused. So Okay. the problem with me is कि decision making becomes a problem. Okay. अगर मैं किसी फायर को हायर करूं, फॉर एग्जांपल फॉर माय कंपनी, तो फायर एयर पे भारी रहेगा, या मतलब That is a different detailing, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, because we can even decide कि अगर दो लोगों में लड़ाई होगी तो जीतेगा कौन। That is also fixed by the elements. फायर एयर की लड़ाई होगी तो फायर जीतेगा, वाटर फायर की लड़ाई होगी तो वाटर जीतेगा, एयर वाटर की लड़ाई होगी तो एयर जीतेगा। You can decide the outcome based on the elements as well, but वो थोड़ा सा बहुत डिटेलिंग हो जाएगी। But I would suggest कि find some good fire in your family and take his input, that will also work. Instead of hiring a fire as a resource, it would be nice कि find a fire person in your family and take his input. ठीक है, let's move ahead. अब मैं एक बार स्लाइड शेयर कर देता हूं बेस्ड ऑन दी, मैं जल्दी से रैप अप करता हूं, आई थिंक आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम। मैं रैप अप करता हूं, मैं एक बार आपको करियर बेस्ड ऑन दी एलिमेंट एक बार दिखा देता हूं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं एक बार बहुत सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। अब जो एयर वाले जो लोग हैं वो नॉलेज ओरिएंटेड लोग हो गए। अब एयर फायर एलिमेंट अगर आपको पता चल जाए अपना, तो नॉलेज
बेस्ड ऑन एक्शन, नॉलेज बेस्ड ऑन एक्शन। तो यहाँ पे आर्टिस्ट और डिजाइनर्स आ जाते हैं। ये लोग कैसे हैं, एक ध्वनि को बार बार उसी पे एक्शन कर रहे हैं और एक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। एक डिजाइनर इतनी बार पेंटिंग कर ली, इतना एक्शन कर लिया, तो उसका जो ज्ञान हो गया वो नॉलेज हो गई जिसको वो बेचते हैं। तो इफ यू आर एयर फायर एलिमेंट, यू आर गुड डिजाइनर, यू आर गुड आर्टिस्ट, यू शुड फोकस ऑन दैट फील्ड। ठीक है, एयर वाटर वाले हो गए। नॉलेज बेस्ड ऑन रिसोर्सेज, तो अब इसमें कौन से हो जाते हैं, एक आपके लिए प्रोफेशन हो जाता है लाइब्रेरियन का, एक प्रोफेशन हो जाता है टीचर का। टीचर क्या करता है, जितने भी रिसोर्सेस है उसके बारे में ज्ञान देता है। ठीक है, तीसरा हो जाता है बिकमिंग अ ट्रेनर। चौथा ऑप्शन हो जाता है कि आप प्रोग्रामर बन जाओ, क्योंकि लैंग्वेज इज ऑल्सो अ रिसोर्स एंड यू स्टार्ट प्रोग्रामिंग इट। ठीक है, तो एयर वाटर के लिए प्रोग्रामर्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन बहुत अच्छी, मैंने एक ब्रॉडर एस्पेक्ट दे दिया है, सिमिलर टाइप की फील्ड आप पिक कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग फायर एक्शन, फायर एयर। अब फायर वाला एक्शन ओरिएंटेड होता है, तो एक्शन बेस्ड ऑन नॉलेज। तो लीडर्स किसकी बात सुनते हैं, ऑल दीज आईएएस और जो नहीं है, जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जो नॉलेजेबल लोग होते हैं, वो लीडर्स को एडवाइस करते हैं कि ये चीज करी जाए, और वो लोग एक्शन ले लेते हैं लीडर्स। तो बेस्ड ऑन नॉलेज, तो ये आ जाते हैं फायर एयर पीपल। तो दे आर गुड लीडर्स, दे आर गुड पॉलिटिशियंस, दे आर गुड एंटरप्रेन्योर्स, दे आर गुड एट स्टार्टअप्स। ठीक है, अब आ जाते हैं फायर बेस्ड ऑन फायर वाटर वाले लोग, एक्शन बेस्ड ऑन रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के ऊपर एक्शन करने वाला। तो इसमें आ जाते हैं बिल्डर्स, इसमें आ जाते हैं डेवलपर्स, इसमें आ जाते हैं फैक्ट्री वाले। क्योंकि किसी फैक्ट्री वाला क्या करता है, किसी रिसोर्स को प्रोसेस करता है, उस पर एक्शन करता है। बिल्डर्स क्या करते हैं, ईटा मिट्टी मोरंग सबको मिक्स करके एक उस पर एक्शन करा। तो रिसोर्सेज के ऊपर जो एक्शन करेगा वो वाटर फायर वाले लोग। अब आ जाते हैं वाटर एयर में, तो ये हो गए रिसोर्सेज बेस्ड ऑन नॉलेज। तो ये सर्विस प्रोवाइडर्स इसमें अच्छे होते हैं, जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बन जाइए, मतलब किसी भी चीज की अगर आप सर्विस, किसी रिसोर्स को आप प्रोवाइड करने लगिए तो अच्छे रहते हैं। वेंडर्स और सप्लायर्स, ट्रेडिंग इसमें बहुत अच्छे से आ जाती है, एंड दे बिकम अ रिसोर्स फॉर देम हिमसेल्फ। वही एक किसी फैक्ट्री के लिए रिसोर्स की तरह काम करने लगते हैं। तो वाटर एयर वालों के लिए सर्विस प्रोवाइडिंग अच्छी है, वेंडर्स बन जाना किसी चीज के, सप्लायर्स बन जाना, ट्रेडिंग करना, एंड बिकमिंग वो अपने आप ही के एक रिसोर्स हो जाता है। अब ये वाटर फायर वाले क्या हो, सर्विसेज एक्शन। वॉइस ब्रेक हो रहा है। तो अब क्या होता है, कर रहे हो प्रोटेक्शन सर्विसेज आप प्रोवाइड कर हो, जो होते हैं वो इन दोनों आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है प्रखर जी। मे बी सर। हेलो, हाँ, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी। आप वाटर फायर का कैन यू प्लीज रिपीट? हेलो, हेलो, अब हाँ, कैन यू प्लीज रिपीट वाटर Yes. फायर? Just wait, he might rejoin. अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही, मैं आपको पिन भी कर देता हूँ। या तो अब हम लोग आ जाते हैं वाटर फायर वाले में। तो वाटर फायर वाले क्या हो गए, सर्विसेज बेस्ड ऑन एक्शन। तो जितनी भी प्रोटेक्शन रिलेटेड सर्विसेज होती हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज होती हैं, ये सर्विसेज आप अगर पिक करते हैं तो इस पे आप बहुत डोमिनेट करेंगे, ये फील्ड आपके लिए बहुत एफर्टलेस हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं। बिल्कुल, अब ये लास्ट स्लाइड है मेरी, कि अब अपनी प्रकृति को मेंटेन कैसे करना है। कैसे, एक बार जब आपने फिगर आउट कर लिया कि आपकी प्रकृति ये है, अब क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। जो चीज अगर आप कर दोगे तो आप पीड़ा का अनुभव लोगे। तो ठीक है, तो एयर वालों के लिए बहुत अच्छा रिकमेंडेड होता है कि वो कम से कम सुबह उठ के 30 मिनट्स की वॉक करा करें।
उस पे क्या होगा, और मैंने स्पेशली लिखा है विदाउट मोबाइल। विदाउट मोबाइल मैंने पर्पसली इसलिए लिखा है क्योंकि जब वो 30 मिनट की वॉक पे जाता है एयर एलिमेंट, तब वो खुद से बात करता है। एक नेजी का एक गली रैप करता है, उसने अपने गाने में लिखा था, तू खुद से क्या चाहिए, तू खुद से पूछ। बड़ा हैवी लाइन है वो, तू खुद से पूछ कि तुझसे क्या चाहिए। तो अगर ये क्वेश्चन आपका हमेशा चलता रहता है, तो दिस इज द टाइम जब आपका अंदर सेल्फ, इनर सेल्फ विल टॉक टू यू। अब उसी समय अगर आप मोबाइल यूज कर रहे होगे या गाना सुन रहे होगे, यू विल नॉट बी एबल टू लिसन टू दैट। ठीक है, तो एयर वालों को सुबह सुबह कम से कम वॉक करना चाहिए, उनकी हमेशा ज्ञान होना चाहिए। अगर दिन में कोई नई नॉलेज का इनटेक उनको करना चाहिए, दे शुड ट्राई लर्निंग समथिंग न्यू, दे शुड बी क्रिएटिव एट देयर वे। मैं सही बताऊं, मैं कभी एक बात को एक तरीके से नहीं समझाता, मैं हमेशा वो बात को हमेशा दूसरी तरीके से, क्योंकि मैं खुद बोर हो जाता हूं अगर मैंने वही बात दोबारा वैसे ही समझा दी। ठीक है, तो दे शुड बी क्रिएटिव एट देयर वे, दे शुड लिसन टू म्यूजिक। मैं तो ऐसा हूं कि मेरे बैकग्राउंड में एलेक्सा चलती ही रहती है, कोई या तो हारमोनियम की म्यूजिक चल रही होगी या सितार की म्यूजिक चल रही होगी, दैट कीप्स योर माइंड एट पीस। क्योंकि एयर का क्या है ना, माइंड बहुत तेज चलता है, इट प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन वेरी फास्ट। तो लिसनिंग टू म्यूजिक इट इज गुड एक्ट। मैं एयर वालों के लिए ये भी रिकमेंड करता हूं, इफ दे आर फीलिंग शाय, दे शुड शट द डोर, म्यूजिक तेज चलाओ और पागलों की तरह एक बार डांस कर लो। थोड़ा इसका एग्जांपल देता हूं मैं, भोलेनाथ एक बार डांस करा उन्होंने तो तांडव हो गया था, है ना, मतलब वो एकदम से थोड़ा नाच लेता है, इट इज गुड फॉर एयर, मतलब वो थोड़ा ट्रेन आउट कर जाता है। क्या होता है ना, वो बोलता है नहीं, तो कम से कम इस फॉर्म से थोड़ा ट्रेन आउट हो जाता है, जो अंदर से उसका है, तो वेंट आउट करने में उसके लिए आसान हो जाता है। एयर के लिए बिल्कुल स्पाइसी खाना मना है। जब जब आप चिली खाओगे, ग्रीन चिली या रेड चिली या स्पाइसी खाओगे, आपका फाइनेंशियल नुकसान होगा। मैं बताऊं, मैं जितना भी मैंने बोला है, दिस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन फाइनेंसेस, क्योंकि मेरे गुरु का ही वही मतलब मेरे को ट्रांसफर है। तो इट इज ऑलवेज कि घूम भेद के पार, ये जितनी भी अगर आपने मेरी कोई भी चीज फॉलो करी, तो ये चीज आपके बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगी, ये चीज आपके अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट करेगी। आप एयर एलिमेंटल अगर आपने रिवाइज कर लिया है और आप अगर मिर्चा और ये खा रहे हो, तो आपको फाइनेंशियल नुकसान होगा, यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो। ठीक है, और मैं सही बताऊं, जब जब आप लाइफ में गुस्सा करोगे, आपके रिसोर्सेज छूटेंगे। तो एयर एलिमेंट वालों को हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। आप लखनऊ में है, ठीक है, ये उस फेज में आप रहिए कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में, ठीक है, हम लोग का ये रहता है, और काम करिए, आप बहुत अच्छा ग्रो करेंगे लाइफ। एंड ये चीज करके देखिए, विद इन अ वीक आप डिफरेंस फील कर लोगे। ठीक है, डू नॉट टेक प्रोटीन इन द जिम। जितने भी एयर एलिमेंट वाले जाते हैं जिम में, और अगर वो प्रोटीन का इंटेक कर रहे हैं, इट इज हाईली नॉट रिकमेंडेड फॉर देम, वो उनकी बॉडी को बहुत डैमेज कर देगा। तो एयर एलिमेंट वाले अगर आप पता चल गया है आपको, नेवर टेक प्रोटीन, वो आपके जॉइंट्स में इस सब बहुत दिक्कतें दे देगा। ठीक है, यू फॉरगेट फास्ट, सो कीप मेकिंग नोट्स। ठीक है, अपने नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि फिर नहीं तो आपको लगेगा यार कोई चीज छूट गई है ना। नोट्स बनाते रहिए, नहीं तो रात में वो चीज सोते समय आपको याद आएगी, यार ये चीज याद रहेगी मुझको, कल लिखना है ना। तो ये चीज रात में पीसफुल सोने के लिए आप नोट जरूर बनाते रहिए। एंड डू नॉट लाई, एयर का झूठ बोलना अलाउड नहीं है। जब जब एयर झूठ बोलेगा, वो धार्मिक काम नहीं कर रहा, वो अधर्म कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर में युधिष्ठिर का मैं एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है। जब महाभारत चल रही थी, तो युधिष्ठिर से कहा जा रहा था, कह दो कि अश्वत्थामा मर गया, मैंने सही बोला ना, अश्वत्थामा के लिए बोला गया था। तो बोला कि अश्वत्थामा मर गया तो द्रोणाचार्य लड़ना बंद कर देंगे। तो युधिष्ठिर ने कहा हम झूठ नहीं बोलेंगे, आई एम नॉट टेलिंग लाई, मैं झूठ बोलेंगे नहीं, है ना। तो उसमें क्या हुआ, तो फिर उनको सही में एक हाथी को मारना पड़ा जिसका नाम वो था। तो तब युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मर गया, लेकिन वो आदमी नहीं था, हाथी था। वो जब ये बोल रहे थे तो कृष्ण जी ने संग बजा दिया था उसी में, युधिष्ठिर मर गया और कृष्ण जी ने संग बजा दिया। वो बात ही नहीं निकल पाई जब युधिष्ठिर ने बोला कि वो हाथी था, आदमी नहीं था। तो ये युधिष्ठिर मर गया, ये सुन के द्रोणाचार्य ने अपने वेपन्स डाल दिए थे। तो आप सोच रहे हैं कि युधिष्ठिर बीइंग एन एयर एलिमेंट नहीं, उसने झूठ बोला। एंड युधिष्ठिर, पांचों पांडव में युधिष्ठिर ही है जो स्वर्ग की सीढ़ी पार कर पाया, बाकी कोई नहीं कर पाया था, बाकी सब रास्ते में ही चले गए थे, जो स्टोरी हम लोग की वैदिक स्टोरी बताती है। तो एयर एलिमेंट इज ऑलवेज द क्लोजेस्ट टू गॉड, क्योंकि वो सीधा होता है।
इसीलिए भोलेनाथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बेचारा एयर भोला है, वो बेचारे के कूटनीत और ये सब चलती नहीं उसके माइंड में, ठीक है। फायर वालों के लिए हो जाता है कि आपको कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलते रहना चाहिए, कोई बैडमिंटन या कोई स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि फायर प्रकृति वाले क्या थे, फाइटर क्लान थे, ठीक है। तो जब रियल लाइफ में अब तो ये सब तलवारबाजी तो बंद हो चुकी है, तो कम से कम स्पोर्ट्स में ही जाके फाइट कर लो, मजा आएगी, ठीक है। एक चीज ये हो गई। फिर यही है कर्म ही पूजा, जो नहीं जो बोलते हैं भाई कर्म ही मेरी पूजा है, उनके लिए एक्चुअली कर्म ही उनके लिए पूजा है, ठीक है। तो दे शुड ऑलवेज एक्ट। फायर वालों के लिए हाईली रिकमेंडेड होता है मेडिटेशन, दे शुड ऑलवेज डू इट, दे शुड शेड्यूल देयर लाइफ एंड फिक्स द मील टाइमिंग। अगर आपको अपने फाइनेंसेस अगले हफ्ते से इंप्रूव करने हैं तो फायर वाले अपना डाइट, अगर वो 2 बजे लंच करते हैं तो हर दिन वो 2 बजे लंच करें, अगर वो 8 बजे डिनर करते हैं तो हर दिन वो 8 बजे डिनर करें, अगर वो 8 बजे सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं तो हर दिन 8 बजे सुबह ब्रेकफास्ट करें। दे शुड स्टॉप मंचिंग बिटवीन द मील्स एंड अगले हफ्ते आप लोग फीडबैक दे देना कि भाई साहब बैलेंस बढ़ गया, ठीक है। ये फायर वालों के लिए वेरी नीडेड होता है कि अपनी मील की टाइमिंग को कर दें। फायर वालों को दूध नहीं पीना चाहिए। इस पे मैं जब एक कॉलेज में सेमिनार ले रहा था तो एक मुझको प्रोफेसर ने बताया भी कि एक बुक है शायद कि मिल्क द साइलेंट किलर, तो मैंने तो डिस्कस कर लिया था, लेकिन उन्होंने मुझको इस बुक के बारे में अवेयर कराया कि मिल्क द साइलेंट किलर। एक्चुअली अगर आपको पता चल गया है कि आपका एलिमेंट रजस है, स्टॉप टेकिंग मिल्क, वो डैमेज कर देगा आपको। आप दूध पियोगे आपका पैसा कम होगा, है ना, टेक योर कॉस्ट, ठीक है। फायर वाला जिम में प्रोटीन खा सकता है, ही इज अलाउड, वो उसकी डाइट है ना, वो कर सकता है उसके मतलब एक्चुअली फायर वाले की अंदर की अग्नि बहुत स्ट्रांग होती है, तो यूजुअली डाइजेशन इश्यूज नहीं होते फायर वाले को। और जो फायर वालों को डाइजेशन के इश्यूज हैं, बेचारे के कैश फ्लो की भी समस्या आती है, वो कहेगा बिजनेस में कैश फ्लो स्टेबल ही नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो ये सबसे पहला सिम्टम हो जाता है। फायर वाले से मैं पूछता हूँ तेरा डाइजेशन सही है ना, अगर डाइजेशन नहीं है तो उसके बिजनेस का कैश फ्लो भी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो उसका डाइजेशन आइडियली अच्छा होना चाहिए। He should organize your work desk and everything should be visible. जहां वो काम कर रहा है वहां पे सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज होना चाहिए, नहीं तो वो बहुत इफेक्टिव नहीं हो पाता, ठीक है। क्योंकि वो क्या है ना, वो देखता है और उसको जो चीजें दिख रही है वो वहीं पे काम करता है, ठीक है। फायर वाला चेकलिस्ट पे काम करना चाहिए। मेरे गुरुजी ने बताया था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ जब उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से क्वेश्चन पूछा कि आप इतना बड़ा देश चलाते हो, ये कैसे कर पाते हो, व्हाट इज द ग्रेट सीक्रेट ऑफ इट, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छोटी सी एक लाल डायरी निकाली, कह रहे देश तो ये डायरी चलाती है, मैं तो बस इस पे ही मैं टिक मारता रहता हूँ। तो फायर वालों के लिए हाईली रिकमेंडेड होता है, आइडियल कलर आप लोग का लाल है तो आई वुड सजेस्ट यू कीप अ रेड डायरी एंड कीप अ चेकलिस्ट ऑन इट। और जो चेकलिस्ट में लिख जाए वो देखिएगा, पहले महीने तो आप लोग चेकलिस्ट के काम को करने का ट्राई करोगे और आगे से क्या होगा, चेकलिस्ट में लिख दोगे काम अपने आप हो जाएगा। फील द मैजिक ऑफ द वैदिक साइंसेस, ठीक है। आप एक बार एक्सपीरियंस करिए ये चीज, चेकलिस्ट पे काम करना चालू करिए, ठीक है। फायर वाला झूठ बोल सकता है मोटिवेट करने के लिए, टू शो द विजन, बट यू शुडंट गेट कॉट। अगर आपका झूठ पकड़ा जा रहा है तो दैट मींस योर एलिमेंट वीक कर गया, ठीक है। अब वाटर वाले के लिए आ जाते हैं। वाटर वाला शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर फूड, ठीक है। वंस अ वीक वाटर वाले के लिए होता है, घर में अगर बचत नहीं हो रही है तो अपने घर के वाटर वाले को हफ्ते में 1 दिन बाहर खिलाने ले जाओ, देखना घर में पैसा अपने आप रुकने लगेगा। इट इज अ वेरी गुड तंत्र रेमेडी, अगर मैं कहूँ आप लोगों से वैदिक रेमेडी। घर में पैसा नहीं बच रहा है, अपने वाटर एलिमेंट वाले को हर हफ्ते में 1 दिन बाहर ले जाइए खिलाने के लिए। वाटर वाले को बहुत रोमांटिक मूवीज देखनी चाहिए, उसका बेड बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, उसकी सीटिंग बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए काम करने के लिए। डीक्लटर योर स्टफ एट होम। ये जो वो वाले वाटर वाले हैं जो 7 साल पुराना नल की टोटी का जो रबड़ रखे हुए हैं उसको अपने घर से हटाइए, ठीक है। तो क्या होगा, घर का नया इनपुट चालू हो जाएगा। जिन वाटर वाले जिन्होंने अपने आप को वाटर एनालाइज कर लिया है, अपनी कबर्ड खोल के देखिए, जैसे आप खोलोगे ऊपर से 2-4 सामान गिरेगा नीचे, ठीक है। इफ यू कीप द कबर्ड ऑर्गेनाइज योर बैंक बैलेंस विल ग्रो, ठीक है। तो टेक इट एज अ प्रायोरिटी एंड ऑर्गेनाइज योर कबर्ड वेरी वेल, ठीक है। आप लोग को खट्टा खाना अलाउड नहीं है। जैसे वाटर के लिए दूध मना किया है मैंने, एयर के लिए स्पाइसी चीजें मना करी हैं, वाटर वालों के लिए सिट्रिक चीजें नहीं होती। जब आप लोग सिट्रिक चीजें खाओगे तो क्या होगा, आपके विचार चलेंगे, आप लोग रात में सो नहीं पाओगे, फिर आप लोग कहोगे माइग्रेन का इशू आ रहा है, एंजाइटी हो रही है, ये सब हो रहा है। ये सब ट्रेड्स एयर वालों के लिए, वो लोग इसी में मजे में रहते हैं। आप लोग ना आ जाओ, तो आप लोग सिट्रिक ना इंटेक करिएगा। यू शुड गेट अप एट कंफर्ट। आप लोग वाटर वाले जितने सुबह जल्दी उठ जाते हैं, यू विल ऑब्जर्व कि दिन बड़ा लिथार्जी चला जाएगा। वाटर वाला झूठ बोल सकता है, ठीक है, बट उसका झूठ पकड़ में आ जाता है।
ठीक है, उसको समझ में आ जाता है ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, सबको पता चल जाता है, तो यू आर अलाउड टू लाई। फोकस ऑन सेविंग, डू नॉट वेस्ट मनी एंड रिसोर्सेज। खाली का खाना, खाली का सॉरी मैं इतना बोल गया तो फिर जवाब ऐसी हो रही। थाली का खाना इज नॉट अलाउड फॉर यू टू वेस्ट। आपको कोई रिसोर्स बर्बाद नहीं करना चाहिए। एंड डिवोशन टू गॉड, किसी एक भगवान में हमेशा श्रद्धा रखिए और उसको फॉलो करिए। मैंने शायद अपने अलॉटेड टाइम से बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, बट आई होप मैंने ये 3 एलिमेंट्स आप लोग को बहुत क्लियरली मैं समझा पाया होऊंगा। एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट योर वैदिक जर्नी। ये सब विधाओं में आने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है ये। एंड कोई भी डाउट्स हैं आप लोग को एलिमेंट से रिलेटेड तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड प्रखर जी, प्रखर जी, कैन वी टेक क्वेश्चंस? अभी कुछ क्वेश्चन इज पोस्टेड बाय रेडसेड बाय प्रीतम महाजन। मैं आपको व्यू पढ़ के दिखाता हूँ वो क्वेश्चन। हाउ टू नो व्हाट परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इज देयर इन अ पर्सन? ठीक है, based on all information you have shared so far, I think I have mixed things for each element. तो हर एक पर्सन के अंदर कितना परसेंटेज कौन से एलिमेंट का है, कैसे आइडेंटिफाई करें? See this महाजन जी, this is a quite a skill. मतलब ये तो मैंने पहली ब्रीफ दी है आपको, बट फाइंडिंग द एग्जैक्ट परसेंटेज टेक्स अ स्किल। तो आई वुड सजेस्ट कि मे बी कभी जब भविष्य में कभी होगा तो कभी हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। तो एग्जैक्ट फाइंडिंग द एग्जैक्ट पर्सन इज अ टफ, मगर आई हैव टोल्ड यू द प्रोसेस कि ये जज कैसे किया जाता है। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे जो कंफ्यूजन था मैम को, तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि आपको सुबह काम करना ज्यादा पसंद है कि रात में कंफर्टेबल हो आप। तो बेस्ड ऑन दैट मैंने कंक्लूड कर दिया ये। बट अगर परसेंटेज निकालना है, द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी मच, एक डिटेल्ड क्वेश्चनेयर बनता है एंड देन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड देन वो एग्जैक्ट परसेंटेज आ जाता है। आज के सेशन में आप ये जरूर कंक्लूड कर पाओगे कि पहला एलिमेंट कौन सा है, दूसरा कौन सा है। बट एग्जैक्ट फाइंडिंग द एग्जैक्ट परसेंटेज इज अ स्किल एंड इट टेक्स अ टाइम टू एनालाइज दैट। So a very close friend of mine told me कि आपने शायद उनको हेल्प किया था with प्रकृति एनालिसिस रिपोर्ट and some SWOT रिपोर्ट। एंड सर आप थोड़ा सा एनलाइटन कर सकते हैं क्या चीजें हैं, कि क्या हम लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? Can anyone like get a report done from you? ये हो जाती है। Yes, I do provide these services, but I'll let that be with the Atade Foundation. If they are interested, they will convey all these messages. और कुछ क्वेश्चन है। आई एम कंफ्यूज्ड, एयर विद फायर और एयर विद वाटर, फ्रॉम मधु। ठीक है, एयर फायर। मधु जी आप एयर फायर हैं। I also have doubt. आप एक बार स्क्रीन ऑन कर लीजिए, मैं एक बार देख लूंगा तो मैं आई कैन एनालाइज बेटर। मधु जी यू विल बी गुड एट आर्टिस्ट, चीजें बनाने में और आर्टिस्टिक वर्क में अच्छी होंगी मधु जी, एम आई राइट? यस, आप एयर फायर हैं। Thank you. फायर एंड वाटर में, फायर एंड वाटर फाइट में व्हाई वाटर विंस, प्लीज एक्सप्लेन। ठीक है, क्या होता है, जैसे आपने देखा है ना किचन में जो गरम तवा होता है उसके ऊपर एक बार पानी डालिए, ठीक है, तो तवे की तो जिस जब फायर और वाटर की जब फाइट होती है तो क्या होता है, फायर पॉइंट्स पे बात करता है और वाटर इमोशन और अलग फैक्टर्स में बात करता है। तो क्या होता है ना, फायर को समझ ही नहीं आता है अब इसमें पॉइंट को काउंटर कैसे करा जाए। अब वो कहेगा कि यार तुमने ये चीज ऐसे क्यों नहीं करी, अच्छा जो 9 महीने तुमको पेट में रखा था उसकी वजह से क्या होगा, अब हाउ विल यू काउंटर दैट, है ना। तो कुछ भी निकल सकता है वाटर में एंड दिस इज वेरी टफ कि वही जब पॉइंट से अलग ही बात चली जाएगी तो कैसे लड़ोगे वहां। Yeah, very good session. वेरी और प्रखर जी चाहिए आप, शायद आपका कांटेक्ट नंबर भी अगर आप शेयर कर दे सबके साथ, तो जिन्हें कुछ और भी बाद में कुछ कांटेक्ट करना है आपको तो कर सकते हैं। प्रखर जी एक चीज क्लियर कराना था। जी, जी। आपके बात से सारा पता चल के मैं वाटर हूँ। एक माइनस पॉइंट है कि जल्दी उठने वाला, तो जैसे आपने कहा कि अपना कंफर्टेबल लेवल से उठना चाहिए, तो मैं जल्दी उठने में कंफर्टेबल फील करती हूँ, तो इट्स ओके। देखिए आप ऐसा करिए, फिर कम से कम 8 घंटे की नींद होनी चाहिए आपकी। हाँ वो हो जाती है, यस, अगर 8 क्योंकि घंटे जल्दी सोती हूँ, मैं जल्दी सो जाती हूँ तो जल्दी उठ जाती हूँ। देन इट्स फाइन, क्योंकि वाटर को ये नहीं होना चाहिए कि ही शुड बी स्लीप डिप्राइव्ड। अगर मैं कहूँ तो 8 घंटे
से 9 घंटे की नींद वाटर के लिए अलाउड है, फायर के लिए मैक्सिमम 6 घंटे तक की नींद अलाउड है, और एयर क्या करता है ना, वो बीच बीच में सो के बैलेंस कर लेता है, उसकी नींद ही नहीं होती, वो दिन में 4-5 घंटे ही सो पाता है, तो हर की नींद एक्चुअली ऐसी ही है। अगर क्योंकि आप आपके पॉइंट के हिसाब से सारा मेरा वाटर एलिमेंट ठीक है, बट वही माइनस पॉइंट में जा रहा था, उठने वाला इशू, तो मैं जल्दी सो के जल्दी उठती हूँ, उसमें कंफर्टेबल हूँ मैं। देन इट्स परफेक्ट। थैंक यू। वैसे मेरा कांटेक्ट नंबर है, आई वुड सजेस्ट प्रमोद जी आप ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिएगा एट योर विल। ठीक है, मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। जी। और कुछ क्वेश्चन है किसी को? जब तक कोई क्वेश्चन नहीं लेके आता है, आई विल टेल यू समथिंग कि जब आपका I am still confused. The next thing, like air is sure, but I'm fire or water. I'm really confused because both traits are 50-50. I don't know. आज सबसे एक बात मैं शेयर करती हूँ, आज हमारे आचार्य जी का हैप्पी बर्थडे है, तो सब उनको बहुत विशेष दो। हैप्पी बर्थडे आचार्य जी, वेरी हैप्पी बर्थडे। मेरे लिए बेटा की तरह, तो मैं अब बेटे की तरह इसको विश करती हूँ, हमेशा खुश रहो, जीते रहो। आज बर्थडे वाले दिन इन्होंने सबको कुछ किया। लेकिन प्रखर जी, मैं एक शेयर करना चाहता हूँ कि आपने जब बता रहे थे तो मैं क्विकली एनालाइज कर रहा था, जो मेरे नियर बाय फ्रेंड्स और फैमिली में भी वाइफ और तो बहुत सारी चीजें इतनी मैच हो जाती है, जैसे कि माय वाइफ जस्ट लव टेस्ट, उसको खाने का बड़ा मतलब उसी में दिल लगा रहता है उसका, और आराम से रहना है, कोई गर्दी नहीं है, एकदम बट प्योर वाटर एलिमेंट। I'm sure प्रमोद जी, you are very lucky because I'm telling you, समृद्धि का आशीर्वाद लेके आता है वाटर। एंड आगे आप लोग कभी भी अपने फैमिली में अगर शादी होने वाली है, मेक श्योर कि आपके घर में वाटर एलिमेंट हो। मैं बताता हूँ, आई हैव मेनी केसेस, मैं भदोही के कारपेट फैक्ट्रीज वालों को जानता हूँ, कारपेट इंडस्ट्री वालों को जानता हूँ, उनके घर में शादी हुई और घर में जब वाटर एलिमेंट वाली डॉटर चली गई और अगला वाटर एलिमेंट कोई आया नहीं, तो उस फैमिलीज हैव गॉन डाउन इन द, मतलब इतने बड़े बड़े टर्नओवर से वो लोग नीचे आ जाते हैं। तो मेक श्योर एवरी फैमिली हैज अ लाइक ये 3 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन रहे, एंड हुएवर जो जिनके घरों में शादी होने वाली है, मेक श्योर दोस एलिमेंट्स आर इंटैक्ट एट योर होम। और थोड़ा आप अगर इस पर लाइट देते हो कि अपने एलिमेंट में कैसे रहा जाए, तो लास्ट स्लाइड में जो आपने बताया वो टेक्निक्स है कि अगर हम लोग अपने एलिमेंट से डेविएट होते हैं, तो अगर हम लोग वो फॉलो करें जो आपने लास्ट स्लाइड में दिखाया, देन यू कम बैक टू योर ओरिजिनल प्रकृति। इज दैट करेक्ट? Yes. The first step is to analyze it, then the second step is to maintain it. And मैं सही बताऊं, जो वैदिक दृष्टिकोण में जो साधना कही गई है, वो साधना यही है कि अपने प्रकृति को तुम साधे हुए हो क्या, एंड दैट इज द साधना इन द वैदिक पर्सपेक्टिव। लोगों ने बड़ी अलग अलग ओपिनियन और वेदी दे दिया कि साधना ये होती है, एक हाथ में उल्टा खड़े हो जाओ तब साधना होगी, ये होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। जस्ट होल्ड ऑन टू योर एलिमेंट एंड दैट इज द साधना। Prakhar bhaiya, I have one doubt. So you gave your example, आपने कहा काफी close and knowing you it fits also 30, 40 and 30. तो आप कैसे एक्ट करते हो? आप प्राइमरीली एयर की ही तरह एक्ट करोगे? अगर मैं एयर और फायर दोनों हूँ तो मैं एक ही तरह एक्ट कर सकती हूँ, तो अगर थोड़े से भी अगर मैं ज्यादा एयर हूँ और थोड़ी कम फायर हूँ, आई शुड एक्ट लाइक एन एयर, राइट? Yes, you should act like air. मैं सही बताऊं, right now we are in a planning phase to buy a new house. मैं सही बताऊं, मेरी वाइफ मुझसे इतना खिसिया चुकी है कि हर दिन मैं 2 नए ऑप्शन ले आता हूं। मैं पूरी जगत के लिए, सारी दुनिया के लिए हाउस चूज करा रहा हूं मैं, ठीक है। आई एम दैट पर्सन हु चार्जेस टू चूज हाउस सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए। लेकिन आज जब मैं अपने घर के लिए चूज करना चाहता हूं, एवरी डे आई ब्रिंग 2 more ऑप्शंस एंड आई गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि दैट इज माय प्रकृति एंड आई एंजॉय दैट। Thank you. I had to say something today. The Atade Foundation has helped us because we could have a session with you live. But Prakhar, जैसे Indian families में sir normally क्या होता है, when you get married, I think you're expected to behave like a water, मतलब सुबह उठो and मतलब बहुत चीजें already norms के हिसाब से डली हुई हैं। तो मतलब I wish there was a way कि और लोग ये जान पाते हैं, if there is the platform कि लोग समझ पाते, क्योंकि घर पे इतने ये elements है और उनको साध सकते हैं हम properly। तो I think
मैं बहुत खुश हूं कि अटाटे फाउंडेशन हैज टेकन दिस इनिशिएटिव बिकॉज आई एम टेलिंग यू राइट नाउ आई होप मैंने 40 प्रकृति एनालिस्ट को आज रेडी कर दिया है आज की जो सेशन है नो होप जो ये जो रिकॉर्डिंग अगर पड़ेगी आगे तो मोर प्रकृति एनालिस्ट विल गो इन द मार्केट एंड एनालाइज पीपल एंड स्टार्ट लिविंग अ ब्यूटीफुल एंड अ ग्रोथफुल लाइफ. Yeah, I think it's very right, and because once I know who I'm working with, if I know who is Prakriti, then I can maintain the right relationship rather than fighting and conflicting with that, personality. क्योंकि मैं सही बताऊं वैदिक में कहा जाता है एक किस्सा है जो डिस्कस्ड है तो उसमें कहते हैं कि जो नहीं सती के फादर उनका क्या नाम था गॉडेस सती के जो फादर थे जिन भोलेनाथ से लड़ते थे वो ब्रह्मा के पुत्र कहे गए. हाँ यस दक्ष प्रजापति दक्ष. यस दक्ष के लिए ब्रह्मा जी ने कहा था कि जिसकी मति वैसी हो गई है उसको ब्रह्मा भी कुछ नहीं कर सकता. सेम इज विद द एलिमेंट्स. यू कैन नॉट चेंज एनीवन. पीढ़ा तब आती है आइदर यू हैव चेंज्ड योर एलिमेंट तब पीढ़ा आएगी. एंड इफ यू ट्राई टू चेंज सामने वाले के एलिमेंट को बदलने का प्रयास आप करोगे कि नहीं भाई आज उसको हम सुनना सिखा देंगे. अब फायर वाले जब सुनता ही नहीं है उसको कितना सुनना सिखा दोगे. इट इज नॉट दिस मतलब थिंग कि वो कभी कर पाएगा. तो व्हाट वी डू हम लोग को लगता है कि हम अपने साथ वाले को आज ये करके दिखा देंगे ये करवाएंगे इससे. दैट नेवर वर्क्स एंड ओनली बोथ विल एक्सपीरियंस पेन. दोनों ही मर लेंगे. फायर वाला अपने जगह सिखा के मर लेगा और वाटर वाला अपनी जगह में बना रहेगा. आप बस पेन एक्सपीरियंस करोगे. अंडरस्टैंडिंग द प्रकृति इज द फर्स्ट स्टेप कि भाई जिंदगी खूबसूरत दिखने लगती है कि भाई साहब अपने ऐसे करते थे. अच्छा मैंने अगर ये रिएक्शन लिया तो दैट वाज माय नेचुरल रिएक्शन. यूजुअली क्या होता है एयर वालों का मैं एक और थोड़ा सा उदाहरण बताता हूँ. एयर वाले जब भी प्रॉब्लम आती है वो भाग जाते हैं. क्यों भागते हैं? क्योंकि उनके जो अपने जो भोलेनाथ है वो भी जब होता था तो भाग जाते थे. ठीक है तो एयर वाले हमेशा क्या होता है जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है दे ट्राई अवॉइडिंग एंड देन गो टू आइसोलेटेड प्लेस. तो इतनी चीजें डिफाइंड है. ये जो स्टोरीज जो बताई गई है हम लोग को पहले इट इज ऑल बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स. एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि जितने भी लोग हैं अब आप लोग जब कोई भी मूवी देखेंगे तो ट्राई अंडरस्टैंडिंग देयर एलिमेंट्स. दैट इज द फर्स्ट स्टेप कि आप इस पे एक्सपर्ट हो सकते हो. यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द एलिमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द मूवी. अंडरस्टैंड कि यार ये फायर एलिमेंट है एंड आई एम टेलिंग यू पूरी पिक्चर में वो क्या करेगा यू विल नो. This is my promise कि सब कुछ पता चल जाएगा आपको कि ये इस पे ऐसा रिएक्ट करेगा because that is his element. और अगर उसने वैसा रिएक्ट नहीं किया that movie will be a flop. जितनी हिट मूवीज गई हैं हर एलिमेंट वाला अपना अपना रोल प्ले करता है. निखिल जी आपका कोई सवाल है? हाँ मुझे पूछना था कि अगर दो फायर साथ में मिलके बिजनेस करने का सोचते हैं तो क्या वो ऐसे प्रैक्टिकली मतलब वो अच्छा जाएगा? देखिए अगर वहां पे क्या होना चाहिए रोल्स के डिवीजन बहुत अच्छे से होने चाहिए. जैसे मान के चलिए इफ देयर इज मतलब रोल्स अगर डिफाइंड नहीं हुए देयर विल बी अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. एंड मैं सही बताऊं दो फायर एक साथ कर नहीं पाते. ये एक म्यान में दो तलवारें रह नहीं पाती है. आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाता है. तो आइदर द रोल्स आर डिफाइंड अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट होगा. और प्रखर जी थर्सडे के दिन योगदान देते हैं तो मैं शेयर कर दूंगा उनकी डिटेल्स. तो थर्सडे के दिन योगदान में अगर किसी को और डिटेल में कुछ जानना है बात करनी उनसे तो आप सब लोग उनसे बात कर सकते हैं थर्सडे के दिन. थैंक यू सो मच. मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ मेरे शायद क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कवर्ड है ना प्रमोद जी. आई थिंक सो. या आई थिंक What about fire starting business together? Yes, वो मैंने बोल दिया. जी आपने फायर के कलर की ड्रेस वॉइस ब्रेक हो रहा है वापस. तो ये मैंने एस्ट्रोलॉजी इसी आपने फायर गुड क्वेश्चन जो हूं दैट इज माय शो बिजनेस टाइम. नहीं आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था. आप
Can you repeat? अच्छा अच्छा जी हाँ यस एक्चुअली ये मैंने अपने एस्ट्रोलॉजी के आधार पे किया है क्योंकि मेरा लियो साइन और सन थर्ड बॉक्स में बैठता है, प्रेजेंटेशन के बॉक्स पे बैठता है। तो जब जब मैं प्रेजेंटेशन करने जाता हूँ मैं अपने सूर्य मतलब सन के जो कलर होते हैं ऑरेंज वगैरह को यूज करता हूँ। दैट एनहांसेस माय प्रेजेंटेशन पार्ट। No, nice. But today's session was very like a different perspective of life. Typically हम लोग लाइफ को या डे टू डे लाइफ में जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, we try to match it based on the experiences or what we learned. I think this is a new way of thinking ki how to make the life even more successful, and successful means more happier by being in the right element. So thank you Prakharjit for sharing this knowledge with us. आपका number लोग asking, so let me see if I can put the number. आपके अगर आप बताते हो मुझे number तो मैं इस पर डाल देता हूँ। मुझे number 9956 yes 9956 11 हाँ 66 okay 11 ये I will put it here in the chat. मैंने आचार्य लिखा नहीं। Yeah, so for everyone, maybe Prakhar ji Thursday के दिन योगदान करते हैं. So anyone has any question, doubts, need to know more information, always you can WhatsApp him or whatever आपको जो भी comfortable है प्रखर जी, call करना है तो call भी कर सकते हैं. Thank you so much, Pramod ji, for giving me this opportunity, and everyone is a lovely audience here. सब लोग बहुत अच्छा response दिया, and I enjoyed interacting with you all, and thank you so much for the lovely wishes as well for my birthday. I think this could be my best birthday gift, Pramod ji, you have ever given. Someone has ever given. Oh, thank you very much, and once again many happy returns of the day. आप ऐसे ही लोगों को गाइड करते रहिए और make their life happier. Thank you. Thank you. Any more question, anyone? Otherwise, we'll close the call in next 2 minutes. Thank you so much. Thank you. So much. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. I'll stay here until you guys. Thank you. Perfect. Host, I will wait for some time until everybody logs out, and then last minute में फिर मैं close कर दूंगा meeting. Okay. All right. Thank you. I'm closing the meeting.